for carrying out research successfully, softwares for identifying the genuinity of a research. There are softwares for both of it, both of them. We'll discuss that also, right? So if you look at the topics or if you look at the titles itself, the titles are extremely vast in nature. Right? There are so many different things that a student, a PhD entrance student is required to study, right? So these are the 10 basic ideas, some important topics which are to be understood, which are to be covered by a PhD student. Apart from this, there is more to research methodology. That also we'll see. Okay. Tell me whether you have discussed about these topics that you see on your screen. Selection of topic, proposal, hypothesis, significance. Yes or no? Just tell me yes or no. Have you discussed? Have you studied? Have any of the previous guest speakers spoke about these topics? किसी ने बात की? Hypothesis, sir. Actually, I'm Hypothesis. unable to speak, unable to hear properly because I have some issue with my speaker. Speakers में कुछ problem है. तो आप please इसमें chat box में ही डालिए. You can answer in the chat box, please. Okay. Okay. So we have discussed about hypothesis. Just hypothesis. What about other things? See, let this be more of a discussion kind of a session. What about other things? Okay, anyways, right? Okay, fine. See, when we are talking about these titles, these topics that you see on your screen, each of the topic requires lot of study, lot of research in itself, right? It requires a lot of study. Right from the very beginning, when you are selecting a research topic, ठीक है, जहां पे आप रिसर्च टॉपिक सेलेक्ट कर रहे हैं, वहां से लेकर के फाइनल थीसिस सबमिट करने तक, इनफैक्ट फाइनल थीसिस सबमिट होने के बाद भी जब आपका पीएचडी वाइवा रहेगा, फाइनल वाइवा रहेगा, वहां तक भी काफी ज्यादा स्टडी की जरूरत पड़ती है, काफी ज्यादा अलर्टनेस रहना जरूरी है, ठीक है. many I have seen many people who choose, who commits mistake in selection of the topic itself, right? या तो वो टॉपिक बहुत ही ज्यादा लूज लेंगे, राइट? पीएचडी का टॉपिक बहुत ही ज्यादा लूज रहेगा, बहुत ही ज्यादा सिंपल रहेगा, ऐसा टॉपिक रहेगा जिसके ऊपर ऑलरेडी हजारों लोगों ने पीएचडी की हुई है, या तो इतना ज्यादा सिंपल रहेगा, या फिर टॉपिक इतना ज्यादा टेक्निकल रहेगा, इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा कि उसके ऊपर रिसर्च करना मुश्किल है, राइट? मतलब उसके ऊपर डेटा कलेक्शन मुश्किल है, उसके ऊपर कुछ प्रॉपर, जैसे कि लॉ में बोलेंगे तो केस लॉज मिलना मुश्किल है, लॉज मिलना मुश्किल है, राइट? तो फिर रिसर्च कैसे करेंगे, राइट? कई बार जोश जोश में ले लेते हैं टॉपिक, नया टॉपिक रहता है, नया इश्यू रहता है, उसके ऊपर ले लेते हैं टॉपिक, लेकिन बाद में फिर प्रॉब्लम हो जाता है, बाद में फिर समझ में नहीं आता कि करना कैसे, राइट? सो सिलेक्शन ऑफ टॉपिक इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स PhD research, right? And that has to be done very skillfully. If you commit a mistake in selecting the topic, then what will happen? You will start with the defective topic itself, राइट? और एक साल, 2 साल, 3 साल खत्म होने के बाद भी समझ में आता है कि यार टॉपिक गलत हो गया है, राइट? ये टॉपिक नहीं लेना चाहिए था, राइट? वो जो है व्हाट डू से, वो जो मिस्टेक है वो कई वो बाद में रियलाइज होती है, ठीक है? इसीलिए टॉपिक सिलेक्शन के टाइम पे बहुत ज्यादा अलर्ट रहना जरूरी है, ठीक है? इफ यू आर हैविंग एनी डाउट, any confusion relating to selection of topic, you should speak to your guide, right? To speak, you should speak to your seniors, you should speak to your friends, and you should discuss as to whether the topic that you are planning to select is good or bad, whether it will work or not, right? That is something with the selection of topic. Then there is a proposal, you have to prepare a legal document, right? This is a rough draft of what research you are going to carry out for the next 3 years. I'll not go into too much details with this, right? Because हर एक के ऊपर काफी सारे categories, सब categories है, right? But there is a systematic format of preparing the research proposal, right? This is something that you need to prepare
and you need to present before the competent authorities, right? In case of our university, it is RAC, Research Allocation Committee, right? You have to present a proposal before them. They will review the proposal. If they think that the proposal is okay, your research topic is good, then they will allot you a guide, or else they will refuse your research proposal and you will have to prepare another proposal. You have to change the topic, you have to make some necessary changes in the contents itself. That is something that you will have to do, and you can resubmit your proposal. The third one is hypothesis. Now, what is hypothesis? Hypothesis is nothing but a tentative idea, a tentative outcome that you expect from your research. सिंपल वर्ड्स में अगर समझना है हाइपोथेसिस को, तो ये एक अंदाजा है कि तुमको क्या लग रहा है कि रिसर्च का आउटकम क्या होगा. ठीक है. लेट मी डिस्कस दिस फ्रॉम अ लीगल पर्सपेक्टिव. थोड़ा सा हम लीगल पर्सपेक्टिव से इसको मैं समझाने की कोशिश करूंगा. ठीक है. हाइपोथेसिस को imagine a situation that there is a building. In the building, on one floor of that building, there are 4 apartments. Right? There are 4 apartments in the building. The apartment, let's say, is on the 10th floor. Listen carefully. ठीक है. एक बिल्डिंग है, उसमें एक फ्लोर, वो एक लेट्स से कि 12 मंजिले की बिल्डिंग है. ठीक है. और एक फ्लोर के ऊपर 4 अपार्टमेंट्स है. 10वें फ्लोर का जो अपार्टमेंट है, जो फ्लोर है, राइट, उसमें से एक रूम काफी दिनों, एक फ्लैट जो है काफी दिनों से बंद है. अब आसपास के जो नेबर्स है, आसपास के जो लोग हैं, उनको वहां से फाउल स्मेल आना शुरू हो गई, कुछ बदबू आना शुरू हो गई. उन्होंने सेक्रेटरी को बोला, सेक्रेटरी ने पुलिस बुला ली. राइट. सबने मिलकर डोर नॉक किया, दरवाजा बजाया, किसी ने दरवाजा खोला नहीं. फिर पुलिस वाले दरवाजा तोड़ के अंदर चले गए, तो उनको अंदर एक डेड बॉडी मिली. लिसन केयरफुली. उनको अंदर एक डेड बॉडी मिली. ठीक है. जो कि काफी दिनों से उसकी डेथ हो चुकी थी. अब पुलिस वालों ने घर के अंदर की सारी खिड़कियां, दरवाजे सब चेक किए. राइट. सब बंद था. कहीं से कोई घुसने की या आने की कोई ये नहीं था, कोई साइंस नहीं थे सिम. राइट. पुलिस वाले दरवाजा तोड़ के अंदर गए, इसका मतलब दरवाजा अंदर से बंद था. ठीक है. नाउ यू टेल मी कि वो जो बॉडी है जिसकी डेथ हुई है, उसके साथ क्या हुआ होगा? क्या लग रहा है तुमको, क्या होगा? पुलिस पहला अंदाजा क्या लगाएगी, क्या हुआ होगा वहां पे? Suicide. I'll give you 2 options, whether it is a murder or it is a suicide. Type in the chat box. Suicide. Chat box में टाइप करो प्लीज. Okay, whether it is a murder or it is a suicide. ठीक है. What will be the first impression of the police officials? दरवाजा बाहर से अंदर से बंद था, और अंदर से सारी खिड़कियां दरवाजे भी बंद है. ठीक है. तो अंदाजा क्या रहेगा? इट इज अ सुसाइड. दिस, ओके, राइट. सो दिस इज नथिंग बट हाइपोथेसिस. राइट. हाइपोथेसिस मतलब रिसर्च शुरू करने के पहले, अब ये रिसर्च नहीं है, ये इन्वेस्टिगेशन है, बट एनीवेज, रिसर्च शुरू करने के पहले ही अंदाजा लगाना कि रिसर्च का आउटकम क्या हो सकता है. राइट. इन दिस एग्जाम्पल, इन दिस केस, पुलिस ने जो अंदाजा लगाया कि ये सुसाइड हो सकता है. ठीक है. क्यों? क्योंकि ऐसा लग रहा है, देख करके सिनेरियो को देख करके, केस के फैक्ट्स को देख करके ऐसा लग रहा है कि सुसाइड हो सकता है. ठीक है. अब ये सुसाइड है या नहीं है, ये हम बाद में पता चलेगा, जब पूरा इन्वेस्टिगेशन होगा, पता चल, इंक्वायरी होगी, लोगों से पूछताछ होगी, एविडेंसेस कलेक्ट होंगे, सैंपल्स कलेक्ट होंगे, बाद में पता चलेगा कि ये सुसाइड है या मर्डर है. ठीक है. बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम द पुलिस ऑफिशियल्स आर ऑफ द ओपिनियन दैट दिस इज अ सुसाइड. This is nothing but your hypothesis. Right. So what is hypothesis? Hypothesis is a preliminary idea about the outcome of the research. When you are drafting a research proposal, right, you are identifying a particular problem. Right. तुम ये पता लगा रहे कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, क्या प्रॉब्लम है. फ्रॉम लीगल परस्पेक्टिव मैं बोलूंगा कि ये लॉ बराबर नहीं है, ये लॉ के अंदर डिफेक्ट है. ठीक है. वो मेरा ये रहेगा, हाइपोथेसिस रहेगा. अब वो डिफेक्ट है या नहीं है, वो मैं पूरा रिसर्च कंप्लीट करने के बाद में पता लगाऊंगा. ठीक है. पता चलेगा. अगर डिफेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. दैट इज हाइपोथेसिस मे बी राइट, हाइपोथेसिस मे बी रॉन्ग. लेकिन हाइपोथेसिस को साबित ही करना है,
और उस वजह उस पॉइंट ऑफ व्यू से, उस ऑब्जेक्टिव से रिसर्च कंडक्ट करना ये गलत होगा। दैट ऑल्सो विल डिस्कस। ठीक है, बट आई थिंक यू गॉट एन आइडिया अबाउट व्हाट इज हाइपोथेसिस। Drawing a particular solution to the research problem in the very beginning is called as hypothesis. ठीक है, that is something that you have to be very skillful with while drafting a hypothesis. ठीक है, क्योंकि आगे चल के तुमको ही वो hypothesis prove करना है. Right? Some of the researchers, some of the research proposals, thesis that I see, that I come across, मुझे दिखाई देता है कि जो स्टूडेंट्स हाइपोथेसिस फ्रेम करते हैं वो पांच पांच छः छः दस दस हाइपोथेसिस फ्रेम कर देते हैं। ठीक है, इतने ज्यादा हाइपोथेसिस, अब डिपेंडिंग अपॉन योर टाइप ऑफ रिसर्च एंड योर एरिया ऑफ रिसर्च, राइट, सही भी हो सकता है, आई डोंट नो। ठीक है, बट इट इज सजेस्टेड, इट इज अ जनरल ओपिनियन दैट 2 to 3 hypotheses or at the most 3 to 4 hypotheses are more than sufficient. ठीक है, मैं किसी केस में, मतलब मैं मेरे रिसर्च में ये बोल सकता हूँ कि पुलिस वाले ठीक से काम नहीं कर रहे, कोर्ट जो है वो केसेस डिसाइड करने में टाइम लगाता है, जो लॉज बने हुए वो ठीक नहीं है। ठीक है, और लोगों में अवेयरनेस भी नहीं है। ये 4 हाइपोथेसिस हो गया, ये 4 स्टेटमेंट्स है, जो चीजें जो आइडियाज है ये मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये मेरे हाइपोथेसिस है। अब ये चीजों को मुझे प्रूव करना है, पुलिस वाले कैसे, हाउ द पुलिस ऑफिशियल्स आर नॉट परफॉर्मिंग देयर ड्यूटी, हाउ द व्हाई द कोर्ट्स आर delaying the matters, why there is so much pendency in the court of law. ठीक है, तीसरा कि लॉज डिफेक्टिव है तो कौन से लॉज डिफेक्टिव है जिसकी वजह से सोसाइटी में क्राइम रेट बढ़ रहा है। ठीक है, और चौथा, लोगों में अवेयरनेस नहीं है, लोगों में कौन सी चीजों के बारे में अवेयरनेस नहीं है। ये मेरे 4 हाइपोथेसिस है, मुझे ये 4 प्रूव करने पड़ेंगे। और आप अंदाजा लगा सकते हैं इन चारों को देख करके ये कितने बड़े बड़े हाइपोथेसिस है। राइट, लोगों में अवेयरनेस है या नहीं है ये पता लगाने के लिए मुझे लोगों के बीच में जाना पड़ेगा, सैम्पलिंग कलेक्ट करना पड़ेगा, डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा और रिसर्च करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा काम है, इतना आसान नहीं है। राइट, कोर्ट में पेंडेंसी क्यों है तो मुझे कोर्ट्स का सर्वे करना पड़ेगा। पुलिस वाले ठीक से काम नहीं करे तो कौन से पुलिस वाले ठीक से काम नहीं, कौन सा पुलिस स्टेशन परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। ठीक है, कौन से एरिया में क्राइम रेट ज्यादा है ये पता लगाना पड़ेगा। तो इट्स अ वेरी heavy kind of a hypothesis, right? So the suggestion that generally is given in case of hypothesis is that the hypothesis should be short and concise. ठीक है, लिमिटेड हाइपोथेसिस रखो क्योंकि आगे चल के तुमको ही इनको प्रूव या डिस्प्रूव करना है। ठीक है, then comes the significance of research. This is a very important part of the proposal as well as PhD thesis. You have to give an idea about what is the importance of your research. ठीक है, how your research is important, what drastic change or what minor social change it is going to bring to the field of research. Okay, then there is literature review, review of different material for carrying out a research. It may be books, it may be websites, it may be different literatures that can be taken into consideration, right? While carrying out these steps of research, whatever you see on the website, there are 2 ways that you can do. You can continue with your research. One is by following the hard copies, the material things, right? Like the books and journals. और दूसरा तरीका है वेबसाइट। there is a whole different subject, there is a whole different presentation that I have with me। ठीक है, कभी मौका मिला तो वो भी बताऊंगा, जिसमें कि आप ये देखेंगे कि इंटरनेट का यूज करके रिसर्च कैसे कंडक्ट करते हैं। वो अभी के लेवल पे आपको उतना ज्यादा यूजफुल नहीं है। जब आपका पीएचडी कंप्लीट हो जाएगा, सॉरी एंट्रेंस एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा, जब आपका कोर्स वर्क रहेगा, तो वहां पे आपको एक सब्जेक्ट है आईटी, राइट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक सब्जेक्ट है, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूज करके आप रिसर्च कैसे कर सकते हैं इसके ऊपर काफी सारा है। बट लिटरेचर रिव्यू में ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन डेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो it will come. Then there is research methodology as to what type of research methodology are you going to use, right? Depending upon the type of the research methodology, your research outcome will be decided. अगर रिसर्च मेथोडोलॉजी सही है, ठीक है, तो आउटकम्स सही होंगे। ठीक है, लेकिन अगर रिसर्च मेथोडोलॉजी चुनने में, डिसाइड करने में अगर गलती हो गई, ठीक है, तो फिर उसके ड्रास्टिक इफेक्ट्स आगे चल के रिसर्च पे हो सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि एक बार आपने कोई रिसर्च मेथोडोलॉजी अडॉप्ट कर ली तो आपको वही फॉलो करना है। ठीक है, आप उससे थोड़ा सा डेविएट हो सकते हैं। ठीक है, उससे थोड़ा सा डेविएट हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे लगा कि मैं कोई एक पर्टिकुलर रिसर्च डॉक्टरनल रिसर्च मेथोडोलॉजी यूज करके कर लूंगा। ठीक है, डॉक्टरनल रिसर्च मेथोडोलॉजी मतलब
ऐसी मेथड जहां पे हम बुक्स, जर्नल्स, न्यूज़पेपर्स, ऐसे कोई हार्ड मटेरियल यूज करके रिसर्च करते हैं। हम बाहर नहीं घूमते, ठीक है, हम फील्ड वर्क नहीं करते। दैट इज कंसिडर्ड एज डॉक्ट्रिनल रिसर्च मेथड। मैंने जब रिसर्च स्टार्ट किया था मुझे लगा कि मैं डॉक्ट्रिनल रिसर्च करके डेटा कलेक्ट कर लूंगा, मेरा रिसर्च कंप्लीट कर लूंगा, लेकिन बाद में मुझे रियलाइज हुआ ये डॉक्ट्रिनल रिसर्च से नहीं हो पाएगा, मुझे नॉन डॉक्ट्रिनल भी करना पड़ेगा। मतलब मुझे एक्चुअली लोगों के बीच में जाना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है, और उस इंफॉर्मेशन को मेरे रिसर्च में इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया नॉन डॉक्ट्रिनल रिसर्च। तो रिसर्च मेथडोलॉजी पहले ही क्लियर हो तो कन्वीनियंट है, ठीक है, आपका काफी सारा टाइम उसी में बच जाएगा। लेकिन अगर रिसर्च मेथोडोलॉजी आगे चल के थोड़ी बहुत चेंज भी होती है, देन ऑल्सो इट इज काइंड ऑफ एन एक्सेप्टेबल। बट वॉट एवर चेंजेस यू आर ब्रिंगिंग इन योर रिसर्च, दैट हैज टू बी रिफ्लेक्टेड इन योर पीएचडी थीसिस, ठीक है। देखो, when we are talking about PhD work, there are few important documents that are presented before competent authorities, ठीक है। वन इज द प्रपोजल, जो बिल्कुल शुरुआत में आप सबमिट कर रहे हैं, दैट इज प्रपोजल एज टू व्हाट टाइप ऑफ रिसर्च और व्हाट इज योर रिसर्च एरिया दैट यू आर गोइंग टू कैरी आउट, दैट इज वन थिंग। दूसरा डॉक्यूमेंट है पीएचडी थीसिस, ठीक है, जो कि एट द एंड आप सबमिट करें, नॉट एट द बिगिनिंग, बट आपका रिसर्च कंप्लीट हो गया है, आप उस टाइम पे कुछ सबमिट करेंगे। अगर प्रपोजल और रिसर्च थीसिस, इनमें अगर कोई कॉन्ट्राडिक्शन है, इसमें अगर कोई चेंजेस है, ठीक है, तो थोड़ा बहुत वो एक्सेप्टेबल है, ठीक है। द आइडिया हियर इज, आपका टाइटल, पीएचडी का टाइटल जो आपने लिया है, जो प्रपोजल में भी मेंशन किया है और थीसिस में भी मेंशन किया है, ये 100% सिमिलर होना चाहिए, राइट। इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता, ठीक है, ये जैसा है वैसा ही होना चाहिए, ठीक है। सोशियो लीगल स्टडी ऑफ चिल्ड्रन इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, फॉर एग्जाम्पल, सोशियो लीगल स्टडी ऑफ चिल्ड्रन इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, अगर ये टॉपिक मैं लेता हूँ, ठीक है, प्रपोजल में मैंने ये टॉपिक लिखा लिखा हुआ है, तो थीसिस सबमिट करते टाइम पे मैं सोशियो लीगल स्टडी ऑफ चिल्ड्रन इन राजस्थान नहीं कर सकता उसको, ठीक है, क्योंकि ये टोटल चेंज हो गया है ये। या फिर सोशियो लीगल स्टडी ऑफ नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र भी नहीं कर सकता, ठीक है, महाराष्ट्र लिया है प्रपोजल में, महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र ही लेना पड़ेगा, दैट कैन नॉट बी चेंज। अपार्ट फ्रॉम द टाइटल, apart from the title of the PhD thesis, all the proposal, all the other things can change. प्रपोजल में आपने जो कुछ भी बाकी का लिखा हुआ है वो सब चेंज हो सकता है फाइनल थीसिस में, ठीक है। प्रपोजल में मैंने रिसर्च मेथोडोलॉजी लिखा था, मैंने लिखा था कि मैं डॉक्ट्रिनल रिसर्च फॉलो करूंगा, ठीक है, लेकिन एक्चुअल थीसिस जब सबमिट किया तब मैंने उसमें नॉन डॉक्ट्रिनल फॉलो किया और वो वैसा मैंने वहां पे लिख दिया, ओके, दैट कैन बी डन, ठीक है, दैट कैन बी डन। So some deviations in the research methodology are allowed in the actual work because proposal is just a proposal. It is a tentative plan of how the research will be carried out. Right? वो उतना hard and fast नहीं है, उस पर changes हो सकते हैं, लेकिन जो thesis रहेगा वो final रहेगा, ठीक है। Then there is one important step of data collection. When you follow a particular research methodology, you collect a lot of data with you, and using that data, right, using that data, certain data analysis is required to be done. Now what type of data you have collected and what type of depending upon the type of data you have collected, the analysis will be done, ठीक है। जैसे मैंने लास्ट स्लाइड में बताया था कि सॉफ्टवेयर है, ठीक है, अगर डेटा कुछ ऐसा है जिसको कि सॉफ्टवेयर में डालना जरूरी है, सॉफ्टवेयर के थ्रू एनालिसिस करना जरूरी है, देन इट विल बी डन अकॉर्डिंगली। और डेटा कुछ ऐसा है कि उसको सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही एनालिसिस कर सकते हैं, देन एनालिसिस विल बी डन अकॉर्डिंगली, ठीक है। सो डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन केस ऑफ रिसर्च, ठीक है। एंड फाइनली कम्स द प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशंस इन फॉर्म ऑफ आर्टिकल्स, in form of pre-submission before the research center of your college, then comes the final submission of thesis and final viva, ठीक है। अलग अलग स्टेजेस है प्रेजेंटेशन के। आई थिंक आर्टिकल्स वाला जो पार्ट है वो काफी सारे यूनिवर्सिटीज ने अभी डिलीट कर दिया है। what used to happen previously when a researcher used to carry out research, right, PhD research, he was required to publish
एटलीस्ट 2 आर्टिकल्स ऑन हिज रिसर्च वर्क, 2 to 3 आर्टिकल्स पब्लिश करना कंपलसरी था। काफी सारे यूनिवर्सिटीज में ये रूल था, ठीक है। लेकिन बाद में ये रूल डिलीट हो गया, मतलब अब रिसर्च आर्टिकल्स पब्लिश करना जरूरी नहीं है, यू कैन डायरेक्टली गो ऑन विद योर थीसिस वर्क, ठीक है। दैट इज अ कंडीशन हियर। Okay, so this is a brief idea as to how the PhD research work is carried out from top to bottom. Right, the work begins with selection of topic, and the work ends with submission of final thesis, submission of viva before the external supervisors. Right, in between there is a lot of work to do. Okay, और ये वर्क आप जितना सिस्टमैटिकली, जितना सिंसियरली करेंगे, राइट, उतना जल्दी आपका पीएचडी कंप्लीट होगा, राइट। You must be knowing that you get 3 years to complete your PhD, right? So you should try to complete your PhD within 3 years of time, because if you delay your PhD, राइट, 3 साल के आगे जाएंगे तो एक्स्ट्रा पैसे तो भरना ही पड़ेगा, फीस लगेगी, लेकिन वो फिर डिले होता रहता है, जल्दी खत्म नहीं होती है। मैंने देखा है कि जिसने 3 साल में कर लिया उसने कर लिया, जिसने 3 साल में कंप्लीट नहीं किया उसको 5 साल भी लगे, 7 साल भी लगे, किसी किसी की लैप्स भी हो गई, ठीक है। पीएचडी का टेन्योर ही खत्म हो गया, पूरा पीएचडी जीरो हो गया उनका, ठीक है। ऐसा भी होता है। सो व्हाट यू नीड टू डू, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विथ योर पीएचडी रिसर्च वर्क। ओके, दिस वाज अबाउट पीएचडी वर्क। नाउ what is research? Now back, let's focus our attention to research, characteristics of research, types of research, and all. Right. Now what is research? In simple words, research is nothing but adding, verifying, separating, deleting, amending some existing set of knowledge. Means, in simple words, if you are bringing some valuable changes in the existing set of knowledge, it is called as research. Right? जो नॉलेज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उसमें अगर आप कोई चेंजेस ला रहे हैं, उसको आप अपडेट कर रहे हैं, ठीक है, उसको आप अगर वेरीफाई कर रहे हैं, उसके अंदर कोई नई चीज ऐड कर रहे हैं, या फिर कोई चीज आउटडेटेड होगी तो उसको आप बाहर निकाल रहे हैं, देन इन दैट केस इट इज कंसिडर्ड एज अ रिसर्च, ठीक है। इट इज कंसिडर्ड एज अ रिसर्च। रिसर्च मीन्स एडिशन, अल्टरेशन, सेपरेशन, डिलीशन और अमेंडमेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग सेट ऑफ नॉलेज, एग्जिस्टिंग और न्यू नॉलेज, ठीक है। इसी एक सेंटेंस के बेसिस पे रिसर्च के कई सारे टाइप्स बने हुए हैं, ठीक है, कई सारे टाइप्स बने हुए हैं, हम थोड़ी देर में देखेंगे। All researches should be scientific, systematic and verifiable. This is one important criteria about a good research. Research must be scientific in nature. What is the meaning of scientific? Here the word scientific does not mean the typical science word, right? It does not mean that, okay, gadgets होने चाहिए, experiments होने चाहिए, chemicals होने चाहिए. No, here the word scientific means you have to follow the principles, right? Whatever the principles that have been decided by the philosophers, by the authors, you have to follow those basic principles, and you have to carry out your research activity, right? You have to carry out your research activity. That is called as scientific. For example, if a person wants to carry out quantitative research, क्वांटिटेटिव रिसर्च का मतलब होता है कि आप कई सारा डेटा कलेक्ट करने वाले, क्वांटिटी, राइट, ठीक है, कुछ नंबर्स में डेटा कलेक्ट करने वाले हैं आप, थियोरेटिकली ये नंबर्स में डेटा कलेक्ट करने वाले और उसको उसका एनालिसिस करने वाले। फॉर एग्जांपल, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन, सॉरी, राइट टू एजुकेशन एक्ट इन महाराष्ट्र, अगर ये मेरा टाइटल है, ठीक है, अगर ये मेरा टाइटल है तो ये टाइटल क्या डिमांड करता है कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो एक्ट है, ठीक है, उसके अंडर में कितने बच्चों को एजुकेशन का फायदा मिला, ये मेरा रिसर्च है, ठीक है। अब अगर मैं मनमानी करूंगा और मनमानी करके मैंने सिर्फ नांदेड़ का या फिर नांदेड़, परभनी, हिंगोली, ये 2-4 डिस्ट्रिक्ट्स का अगर मैंने डेटा कलेक्ट किया और वही डेटा पब्लिश कर दिया, तो साइंटिफिक हुआ क्या? नहीं। अगर मैंने सिर्फ कुछ ही स्कूल्स का डेटा कलेक्ट किया, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल्स का ही डेटा कलेक्ट किया, तो वो रिसर्च प्रॉपर हुआ क्या? द आंसर इज नो, राइट। अगर मैंने सिर्फ प्राइवेट स्कूल्स का ही डेटा कलेक्ट किया तो वो हुआ क्या? नो,
right? So the point here is you have to follow the scientific principles. Here you have to follow the sampling method, right? सैम्पलिंग मेथड, यहाँ पे डेटा कलेक्शन करते टाइम पे सैम्पलिंग मेथड एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, वो फॉलो करना जरूरी है, राइट? तभी वो रिसर्च प्रॉपर होगा. सो द वर्ड साइंटिफिक सिस्टमैटिक का मतलब वही है कि जो आपको लीगल प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं कि सैंपल्स कलेक्ट करना है तो कैसे कलेक्ट करना है. ठीक है, आप पूरे महाराष्ट्र के पूरे स्कूल्स का डेटा कलेक्ट नहीं कर सकते, ये बहुत ज्यादा बल्कि हो जाएगा, बहुत ज्यादा वास्ट हो जाएगा. तो यहाँ पे आपको सैंपल लेने हैं, थोड़े थोड़े लेने हैं, ठीक है? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने नांदेड़ से एक गवर्नमेंट स्कूल ले लिया, एक प्राइवेट स्कूल ले लिया, एक सेमी गवर्नमेंट ले लिया, ठीक है? गवर्नमेंट ले लिया, प्राइवेट ले लिया, लेट्स से दो ही लिया मैंने, ठीक है? तो हर डिस्ट्रिक्ट में, महाराष्ट्र के हर एक डिस्ट्रिक्ट से मैंने दो दो स्कूल, ठीक है? दैट कैन बी डन. दो दो स्कूल्स भी सफिशिएंट डेटा नहीं होता है, उसमें तो पता नहीं चलता है, ठीक है? लेकिन एक आइडिया दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है? सो दिस इज हाउ सैम्पलिंग शुड बी कैरिड आउट. So when we are talking about research, research should be scientific and systematic in nature and verifiable also. Verifiable का मतलब आप उसको बाद में वेरीफाई कर पा रहे हैं, ठीक है? वही रिसर्च अगर हम फिर से कंडक्ट करेंगे तो रिजल्ट वैसा ही आएगा, ठीक है? 1+1 = 2, ये रिसर्च अगर हमने कंप्लीट किए और दूसरा कोई आदमी आकर के वो भी चेक करता है कि 1+1 सच में 2 होता है क्या, तो उसको भी 2 आंसर आना चाहिए. दैट इज वेरीफाइबल. द रिसर्च शुड गिव अ कंसिस्टेंट आउटपुट. ये ऐसे, ये चीजें प्योर साइंसेस में इजी है, प्योर साइंसेस में होती है ये चीजें, राइट? के रिजल्ट एक जैसे आते हैं. व्हेन वी टॉक अबाउट सोशल साइंसेस, राइट, रिजल्ट एक जैसे आएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, राइट? बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट सोसाइटी. किसी फिलोसोफर ने काफी अच्छे अच्छे एक स्टेटमेंट बोला है सोसाइटी के बारे में, सोसाइटी इज अ डायनामिक कंसेप्ट, ठीक है? मीन्स सोसाइटी कंटिन्यूअसली चेंजेस, इट इज नॉट कंसिस्टेंट, राइट? जो सोसाइटी हम आज देख रहे हैं वो आज से 50 साल पहले नहीं थी, जो 50 साल पहले थी वो 100 साल पहले नहीं थी, जो 100 साल पहले थी वो 500 साल पहले नहीं थी, राइट? सो सोसाइटी इज कंटिन्यूअसली गोइंग अंडर चेंज. So when a person is doing social research, the outcomes may differ, right? But it is a general principle, general statement about research is that all researches should be systematic, scientific, and verifiable. Check करने आना चाहिए उस चीज को. Okay. Researchers research into different aspects of the topic such as social, political, economic, geographical, etc. Right? Different, there may be certain research areas, you may be having some topics in your mind, right, which require study of different areas. जैसे अगर मुझे रिसर्च करना है why a person becomes a criminal, एक आदमी गुनहगार क्यों बनता है, इसके ऊपर अगर मुझे रिसर्च करना है, राइट, तो मेरा रिसर्च सिर्फ इकोनॉमिक एस्पेक्ट पे नहीं रहेगा कि एक आदमी गरीब घर में पैदा होता है इसलिए वो गुनहगारी की तरफ जाता है, राइट? मुझे उसकी इकोनॉमी, मुझे उसकी सोशल अपब्रिंगिंग, मुझे ज्योग्राफिकल लोकेशन, राइट, मुझे उस एरिया का पॉलिटिक्स, ये सभी चीजें कंसिडर करना पड़ेगा. तब कहीं जाकर के मेरा रिसर्च कंक्लूसिव रहेगा, प्रॉपर रहेगा और मुझे पता चलेगा कि व्हाई अ पर्सन बिकम्स अ क्रिमिनल, राइट? आपने एक चीज सुनी होगी कि गर्मी के दिनों में चोरी चकारी के जो इंसिडेंसेस है वो काफी बढ़ जाते हैं. जब कभी सूखा पड़ जाता है या गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो चोरी चकारी के इंसिडेंसेस काफी बढ़ जाते हैं, ठीक है? वेदर यू हैव हर्ड दिस, पढ़ सुना है कहीं पे? यस और नो? टेल मी इन द चैट बॉक्स. Okay, if you want me to repeat the question, then you can say that one in the chat box. ठीक है, अगर क्वेश्चन समझ में आया तो पूछ सकते हैं वापस से, ठीक है? लेकिन काफी सारे लोग सुन रहे हैं केयरफुली, ठीक है? और द एंड दे हैव हर्ड इट, राइट? अब यहाँ देखो, जियोग्राफिकल कंडीशन के एक आदमी के क्रिमिनल बनने के पीछे रीजंस हो सकते हैं, राइट? ज्योग्राफी कभी कभी एक आदमी को क्रिमिनलिटी की तरफ ले जाती है, ये एक रिसर्च है. अब पॉइंट यही है कि यहाँ पे अगर मुझे इस टाइप का कोई रिसर्च करना है तो मुझे अलग अलग फैक्टर्स को कंसिडर करके रिसर्च करना पड़ेगा, राइट? अगर कोई केमिकल साइंस वाला व्यक्ति है, ठीक है, उसको इन चीजों से कोई मतलब नहीं है, उसका अगर रिसर्च ओरिएंटेड केमिस्ट्री से ही, केमिस्ट्री का ही अगर कोई रिसर्च टॉपिक होगा उसका, तो उसको ये बाकी चीजों से कोई मतलब नहीं, सोसाइटी में क्या चल रहा है, पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, इकोनॉमी किस तरफ जा रही है, राइट? उसको इन चीजों से मतलब नहीं, उसको उसको उसका रिसर्च टॉपिक और उसकी रिसर्च लैबोरेटरी, दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर हिम,
right? But when we talk about social research requires a lot of deliberation, right? Okay, next point, when we talk about research, there are some synonym names that are used for research, right? Research, investigation, discovery, survey, right? Just a minute, huh? Okay, okay. Research, investigation, discovery, survey, these are the different names that are, okay, that are used in a synonym way, synonymous way, right? लेकिन इनके अलग अलग मतलब है. रिसर्च एक अलग चीज है, इन्वेस्टिगेशन एक अलग चीज है, डिस्कवरी अलग हो सकता है, सर्वे, इन्वेस्टिगेशन एक्सेट्रा, राइट? डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ एक्शन दैट हैज टेकन प्लेस, राइट, द नेम विल चेंज. ठीक है, जो मैंने पुलिस वाले का एग्जांपल दिया था वो है इन्वेस्टिगेशन, राइट? डिस्कवरी एक अलग चीज हो सकती है. आपको साइड में एक इमेज दिख रहा होगा, ये है माइक्रोवेव का इमेज. ठीक है, माइक्रोवेव का इमेज. 1945 में पर्सी स्पेंसर नाम के जो एक व्यक्ति थे, ठीक है, आप नेट पे सर्च कर सकते हैं बाद में, 1945 में पर्सी स्पेंसर नाम के एक व्यक्ति थे, एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, वो किसी मशीन पे काम कर रहे थे. काम करते टाइम पे उनके जेब में एक चॉकलेट का एक चॉकलेट रखा हुआ था, ठीक है, और उन्होंने नोटिस किया कि पता नहीं कैसे लेकिन उनका चॉकलेट मेल्ट हो गया, चॉकलेट पिघल गया उनका. तो उन्होंने सोचा कि चॉकलेट पिघला कैसे, मैंने तो इसको गर्म नहीं किया, ठीक है, मुझे खुद को गर्मी फील हुई नहीं, तो फिर एक पिघला कैसे? तो उन्होंने उनको पता चला कि माइक्रोवेव नाम के जो वेव्स है जो मशीन से निकल रहे थे, जिस मशीन पे वो काम कर रहे थे, उसके वजह से वो चॉकलेट पिघल गया. उन्होंने इसके ऊपर और रिसर्च किया, तब कहीं जा करके इन्वेंशन हुआ माइक्रोवेव ओवंस का, जिसमें कि आज हम खाना वाना गर्म करते पकाते हैं, राइट? दिस act of Percy Spencer was by way of discovery. Was by way of discovery. It was an accidental discovery. He did not carry out a systematic research. Right? उन्होंने रिसर्च नहीं किया, उन्होंने रिसर्च बाद में किया, माइक्रोवेव का रिसर्च उन्होंने बाद में किया, लेकिन जो माइक्रोवेव का पता चला, ओवंस का रिसर्च बाद में हुआ, ठीक है, लेकिन माइक्रोवेव का जो पता चला वो एक्सीडेंटल था. ऐसे बहुत सारे एक्सीडेंटल डिस्कवरीज हुए हैं. वास्को डिगामा जब इंडिया आया था वो रिसर्च नहीं था उसका, राइट? वो मोर ऑफ इट वाज मोर ऑफ अ डिस्कवरी. वास्को डिगामा डिस्कवर्ड इंडिया, जो हम जनरल स्टेटमेंट पढ़ते हैं, ठीक है, वो एक्सीडेंटली यहाँ पे आ गया था. दैट इज अ फैक्ट है, right? So the point here is when we talk about research, investigation, right? When we talk about research, investigation, discovery, these are different words used in different senses, right? हो सकता है इन सबका उद्देश्य, इन सबका ऑब्जेक्टिव सच ढूंढना है, लेकिन जिस तरीके से वो ढूंढा जाता है और जिस पर्सपेक्टिव में ढूंढा जाता है वो अलग अलग हो सकता है. वी विल डिस्कस अबाउट रिसर्च एंड इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि जनरली यहीं पे कंफ्यूजन होता है, ठीक है, बाकी चीजें अलग है. ओके, विल सी अबाउट दैट. Now look at this. These are some of the characteristics of a good research. How a research is required to be carried out. See, whatever we are discussing here, the first part as well as this one, right? Based upon these parts, okay, based upon these parts, the types of research and the research methodologies designed further. Okay, so research should be scientific and systematic in nature, right? It is a scientific and systematic process. We already had a discussion that a researcher is required to follow a systematic, structured format while carrying out a research. Right. That is the reason why. Uh, okay, this is the reason why you are requested, you are asked to submit your research methodology at the very beginning in the research proposal itself. वहाँ पे जो एग्जामिनर्स है वो यही देखते हैं कि आपका माइंड क्लियर है क्या, कि आपको क्या करना है और कैसे करना है, ठीक है, कौन से टॉपिक पे रिसर्च करनी है और वो रिसर्च आप कैसे करने वाले हैं, राइट, और जो मेथड आप यूज करने वाले हैं वो साइंटिफिक है क्या, बस यही देखना रहता है. इसीलिए एक रिसर्चर को पता होना चाहिए कि वो कौन सी साइंटिफिक मेथड यूज कर रहे हैं. ओके, देन कम्स ऑब्जेक्टिव एंड अनबायस्ड अप्रोच. ठीक है, दिस इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट. ऑब्जेक्टिव मतलब न्यूट्रल. एक रिसर्चर ने रिसर्च करते टाइम पे
न्यूट्रल रहना बहुत जरूरी है, अनबायस्ड होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अनबायस्ड होना बहुत जरूरी है। बायस्ड का एग्जांपल देता हूं मैं, ठीक है, तो आपको अनबायस्ड क्लियर समझ में आएगा। बायस्ड research is generally, not always, but generally found in media, right, in news channels, right. Biased research मतलब एक पर्टिकुलर न्यूज चैनल रहेगा जो एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के फेवर का रहेगा, तो वो रिसर्च कैसे करेगा? वो उस पॉलिटिकल पार्टी को ही अच्छा बताएगा और बाकी पॉलिटिकल पार्टी को गलत बताएगा, राइट। वो भी रिसर्च ही कर रहे हैं, वो भी पता लगा रहे हैं कि क्या हुआ है कैसे हुआ है, लेकिन वो अलग तरीके से प्रेजेंट करते हैं उस चीज को, राइट। उनका पूछने का तरीका बायस्ड रहता है, राइट। सो एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है गुड रिसर्च का, दैट इट शुड बी ऑब्जेक्टिव एंड इट शुड बी अनबायस्ड इन नेचर, राइट। रिसर्च अगर बायस्ड होगा तो एट द एंड वो रिसर्च डिस्कार्ड हो सकता है, वो रिसर्च रिसर्च रिजेक्ट हो सकता है। आई डोंट नो वेदर यू नो दिस और नॉट, लेकिन जब आप फाइनल थीसिस सबमिट करेंगे, ठीक है, आपने पूरा रिसर्च कर लिया, ठीक है, आप बायस्ड होगा अनबायस्ड होगा वॉट एवर, ठीक है, लेट्स से कि अनबायस्ड है, आपने कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव से किसी को नीचा दिखाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी को गलत साबित करने के ही पॉइंट ऑफ व्यू से, हालांकि वो गलत नहीं है लेकिन कुछ चीजें निकल जाती है, रिसर्च किया और आपने वो रिसर्च सबमिट कर दिया, थीसिस सबमिट कर दिया। अब इसके आगे होता क्या है, आपका थीसिस 2 से 3 लोगों के पास जाएगा, राइट, एक्सटर्नल्स के पास। 2 से 3 अलग अलग लोगों के पास आपका थीसिस जाएगा, वो चेक करेंगे कि आपने जो लिखा हुआ है बराबर है या नहीं है, राइट, वेदर इट इज प्रॉपर और नॉट। वो अपना रिपोर्ट देंगे, अगर उनका रिपोर्ट पॉजिटिव आया तो आप सेफ जोन में हैं, ठीक है, आपको कोई टेंशन की जरूरत नहीं, फिर अगला स्टेप रहेगा वाइवा का, ठीक है। लेकिन अगर उन्होंने नेगेटिव रिमार्क डाल दिया, उन्होंने एक पर्टिकुलर परसेंटेज से कम मार्क्स तुमको डाल दिए, तुमको लेट से कि फेल कर दिया थीसिस में, तो आपको पूरा थीसिस चेंज करना पड़ेगा, और पूरा थीसिस चेंज करना मतलब पूरा रिसर्च फिर से करना पड़ेगा, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा रिस्क है। सो पॉइंट हियर इज व्हेन वी आर व्हेन यू आर कैरिंग आउट रिसर्च, you have to be very much objective and unbiased in nature, right. This is one of the qualities of a good researcher, okay, this is a quality of a good researcher. Then there is empirical and evidence based research. Empirical means experimental. Whatever research you are carrying out, that research has to be verified. Certain evidences are required to be kept about those research. That is empirical and evidence based research. लिटरेचर रिव्यू में शायद आपने ये पढ़ा है कि आप जब डेटा कलेक्ट करेंगे तो डेटा को प्रिजर्व कैसे करना है, राइट। आप जो भी डेटा कलेक्ट करेंगे उसका रेफरेंस थीसिस में कैसे देना है, साइटेशंस फॉर्म में, वो शायद आपने पढ़ा होगा। दैट इज वन वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप दैट इज रिक्वायर्ड टू बी फॉलो, राइट। रिसर्च इम्पेरिकल एंड एविडेंस बेस्ड होना बहुत जरूरी है। कल को हो सकता है कि आपने थीसिस पब्लिश कर दिया, सब हो गया, आपने रिसर्च पब्लिश कर दिया, आपको पीएचडी अवार्ड भी हो गई, लेकिन कल को कोई उठ करके बोलता है कि इन्होंने जो रिसर्च किया है वो फ्रॉड है, वो गलत है, फिर उन्होंने डेटा पूरा नहीं लिया, फिर डेटा गलत है इनका। अगर कोई क्लेम करता है तो आपके पास वेरीफाई करने के लिए डेटा होना चाहिए, राइट। आपको प्रूफ करने के लिए कि आपने प्रॉपर रिसर्च किया है, आपके पास में प्रॉपर डेटा प्रॉपर रेफरेंसेस होने जरूरी है। Many a times we give all the references in the thesis itself in form of citations, right? In form of diagrams, charts, whatever. We give it in the thesis itself. But अगर वो नहीं दिया हुआ है तो आपके पास बैकअप में कुछ होना जरूरी है, right? So empirical and evidence-based research is the need of time that has to be carried out. Then there is replicable and verifiable. ठीक है, whatever research has been done that should be verifiable. आगे चल के अगर कोई व्यक्ति वो रिसर्च करता है, वही रिसर्च वही मेथोडोलॉजी फॉलो करके करता है, तो फिर उसको भी वही आउटकम आना चाहिए, ठीक है, सब्जेक्ट टू सर्टेन एक्सेप्शन, जैसे मैंने बोला कि सोशल रिसर्चेज में वही आउटकम आना जरूरी नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, राइट टू एजुकेशन एक्ट में आपने रिसर्च किया, आपने पूरे महाराष्ट्र के स्कूल्स का डेटा कलेक्ट किया और आपने ये कंक्लूजन निकाला कि गवर्नमेंट स्कूल्स में राइट टू एजुकेशन एक्ट इंप्लीमेंट हो रहा है, वो लोग उसको बराबर फॉलो कर रहे हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूल्स वाले उसको फॉलो नहीं कर रहे। आपका रिसर्च है। अब लेट से कि 5 साल 10 साल बाद में कोई दूसरा व्यक्ति आया, उसने उसने आपका ही टॉपिक लिया, आपकी रिसर्च मेथोडोलॉजी लिया और फिर से सर्वे कंडक्ट किया, और उसको ये पता चला
कि आज के डेट में मतलब 10 साल बाद में उस टाइम पे गवर्नमेंट स्कूल्स में राइट टू एजुकेशन फॉलो नहीं हो रहा है और प्राइवेट स्कूल्स में सिस्टमैटिक फॉलो हो रहा है। तो इसका मतलब आपका रिसर्च गलत हो गया क्या? उसका रिसर्च सही है क्या? नहीं। राइट। टाइम की बात है, फर्क है टाइम का। ठीक है। सो द पॉइंट हियर इज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सोशल रिसर्चेस द outcomes may be different at different times. Right? When we talk about environmental researches, the outcomes may be different, but in case of pure researches, the outcomes are the same. Right? What is the chemical formula for water? Tell me. What is the chemical formula for water? Type in the chat box. Right? H2O. Right? This is a chemical formula for H2O. Now, just imagine a situation that a scientist comes. He takes two molecules of hydrogen and one molecule of oxygen, and he merges these two, and he creates water. Right? अब इसके 10 साल 20 साल 50 साल बाद में भी अगर कोई साइंटिस्ट आएगा, वो भी अगर यही एक्सपेरिमेंट करेगा, दो मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का मिक्स किया, तो क्या रिजल्ट आएगा? वाटर ही आएगा। ठीक है। दिस इज रेप्लीकेबल एंड वेरीफाइबल। दिस इज द आइडिया ऑफ रेप्लिकेसिटी एंड वेरीफाइबिलिटी। राइट। कि जो रिसर्च आपने किया है वो आगे चल के फिर से वही रिजल्ट प्रोवाइड करे। ठीक है। देन कम्स पर्पस ड्रिवन एंड गोल ओरिएंटेड रिसर्च। राइट। Research cannot be loose. Research has to be a purpose oriented research. And this purpose is clearly mentioned in your proposal as well as in your thesis in form of objective of research. Right? कि आप रिसर्च करना क्यों चाहते हैं, क्या प्रॉब्लम है सोसाइटी में, what issue the society has which you want to resolve. That is called as purpose driven or goal oriented research. Okay, that is one. Look at this. Research and investigation. जो मैंने बताया था कि research, investigation, discovery, these are different types of words and they carry different meaning. They are used in different senses. So as far as research is concerned, research is something which is more academic in nature. The word is used in academia, right? Academics में ज्यादा यूज होता है। रिसर्च, रिसर्च पेपर, रिसर्च आर्टिकल्स, राइट, रिसर्च मेथोडोलॉजी, ये चीजें वहां ज्यादा यूज होती है। वेयर एज इन्वेस्टिगेशन, इट इज मोर क्राइम ओरिएंटेड, राइट, इट इज मोर टारगेट ओरिएंटेड। इन्वेस्टिगेशन का ऑब्जेक्ट किसी घटना की सच्चाई पता करना होता है, राइट। इन्वेस्टिगेशन, डिफरेंट मेथड्स आर आल्सो डिफरेंट, राइट। रिसर्च का ऑब्जेक्ट है किसी नॉलेज को क्रिएट करना या फिर एग्जिस्टिंग नॉलेज को इम्प्रोवाइज करना। ठीक है। फाइंडिंग न्यू इंफॉर्मेशन एंड डिस्कवरिंग एविडेंसेस, लिटरेचर, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन आर द मीन्स ऑफ कैरिंग आउट रिसर्च। लेकिन इन्वेस्टिगेशन का मेथड अलग हो सकता है। इन्वेस्टिगेशन में पुलिस वाला फॉर एग्जाम्पल क्या करेगा? वो इंटरव्यूज लेगा, वो स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करेगा, ठीक है, वो फोटोग्राफ्स लेगा, वो वीडियो रिकॉर्डिंग करेगा, ठीक है, वो मोबाइल का डेटा चेक करेगा एंड ऑल दिस थिंग्स, राइट। सो कैरिंग आउट इन्वेस्टिगेशन has a different set of different things that are required to be followed in case of investigation, right? Whereas in case of research, a different methodology is required to be followed, right? So there is a minor difference between investigation and research. Okay. Now look at this. किसको किसको ये विंडो याद है जो आपको राइट साइड में दिख रहा है? आज के डेट में ये विंडो दिखाई नहीं देता है। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक मतलब जो पुराने वर्जन थे माइक्रोसॉफ्ट के, ठीक, उस टाइम पे ईमेल कुछ इस तरह से दिखाई देता था, राइट। ये कम से कम 15-20 साल पहले की बात है, 10-15 साल पहले की। ठीक है। उस टाइम पे ईमेल्स कुछ इस तरह से दिखाई देते थे। अब देखो ये काफी इंटरेस्टिंग केस है। ओके। फिलीपींस के एक यूनिवर्सिटी के दो स्टूडेंट्स ने एक वायरस डेवलप किया और वो वायरस का नाम उन्होंने लिखा आई लव यू। वो वायरस की खासियत क्या थी? एक, तो वो वायरस जिसको भेजा गया है, मतलब जिसके ईमेल में वायरस, वो फाइल ओपन, जिसने ईमेल में, जिसके ईमेल में वो वायरस है, उसने ईमेल में वो फाइल ओपन किया, राइट। ओपन करते ही सबसे पहला काम वो वायरस क्या करता था कि वायरस उस व्यक्ति के ईमेल अकाउंट में जितने भी ईमेल्स है, राइट, उन सबको एक एक कॉपी सेंड कर देता था।
ठीक है, वो सबको एक एक कॉपी चली गई, उसके पहला काम ये करता था, और जैसे ही वो काम खत्म हो गया, सबको ईमेल्स चले गए, वो दूसरा काम वायरस क्या करता था कि जो होस्ट कंप्यूटर है, मतलब जिसके कंप्यूटर में वायरस अभी है, ठीक है, वो कंप्यूटर को क्रैश कर देता था, उसका पूरा डेटा डिलीट कर देता था। ठीक है, दो स्टूडेंट्स ने मिलकर के ये वायरस बनाया, वायरस बना करके एक आदमी को भेजा उन्होंने। ठीक है, वो आदमी ने अपना ईमेल ओपन किया, ईमेल होते ही उसको सब्जेक्ट में क्या दिख रहा है, आई लव यू। अब जैसे नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी है कि अगर सब्जेक्ट, अगर ईमेल में ऐसा किसी ने लिख के भेजा है, तो आदमी पहले खोल के देखता है, राइट, मुझे कौन आई लव यू भेज रहा है। ठीक है, दैट इज अ ह्यूमन टेंडेंसी। तो जिसको उन्होंने मेल भेजा, जो होस्ट था उसका, राइट, उसने वो ईमेल ओपन किया, ईमेल के अंदर जो फाइल दिख रही है, फाइल को ओपन किया, और जैसे ही फाइल ओपन किया, उस कुछ सेकंड्स के अंदर, कुछ मिनट्स के अंदर उसका कंप्यूटर क्रैश हो गया। ठीक है, एक तो ईमेल्स चले गए, वो पता ही नहीं चला उसको कि ईमेल चले गए उसके उसके अकाउंट से, और दूसरा कंप्यूटर क्रैश हो गया। अब जो ईमेल्स गए, ठीक है, ये एक तरह का एक चेन रिएक्शन क्रिएट हो गया। ठीक है, अब एक एक के कंप्यूटर से बी को गए, बी के कंप्यूटर से और आगे सी को गए, सी के कंप्यूटर से डी को गए, एक तरह का चेन रिएक्शन क्रिएट हो गया, ठीक, एक तरह की वाइल्ड फायर टाइप क्रिएट हो गया। ठीक है, कि सभी के कंप्यूटर्स में वो जाना शुरू हो गए, और सभी के कंप्यूटर्स धीरे धीरे करके क्रैश होने लगे। तो ये जो कंप्यूटर्स क्रैश हुए, ये बहुत बड़े पैमाने पे थे। ठीक है, इसमें बैंकिंग के कंप्यूटर्स, बड़े बड़े कंपनीज के कंप्यूटर्स, एयरलाइंस के कंप्यूटर्स, ठीक है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के कंप्यूटर्स, प्राइवेट कंप्यूटर्स, ऐसे बहुत सारे कंप्यूटर्स एक साथ क्रैश हो गए। ठीक है, विद इन स्पैन ऑफ वेरी फ्यू डेज। ठीक है, ये पूरे कंप्यूटर्स क्रैश हो गए और गवर्नमेंट को लाखों का नुकसान हुआ। ठीक है, आप अगर सेकेंड लाइन देखेंगे, दैट अटैक टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स, विंडोज पर्सनल कंप्यूटर्स। ठीक है, तो ये जो हुआ था बहुत बड़ा डिजास्टर टाइप हो गया था। ठीक है, जब पुलिस वालों ने इसका इन्वेस्टिगेशन किया, इन्वेस्टिगेशन कर पता लगाया कि ये किसने किया है, तो उनको पता चल गया बाद में कि ये दो स्टूडेंट्स थे जिन्होंने ये चीज की है। ठीक है, शुरुआत यहाँ से हुई थी। ठीक है, पुलिस वालों ने दो स्टूडेंट्स को पकड़ा, अरेस्ट किया, कोर्ट के सामने लेकर के आए, और कोर्ट ने दोनों को ही बाइज्जत बरी कर दिया। ठीक है, कोर्ट ने बोला हम इनके अगेंस्ट में कोई एक्शन नहीं ले सकते। ठीक है, क्यों नहीं ले सकते, हालांकि इन्होंने इतना बड़ा नुकसान किया था। ठीक है, मतलब इतने ज्यादा कंप्यूटर्स, लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो गई थी। ठीक है, टाइम चला गया था, कॉम्प्लिकेशंस हो गए थे। ठीक है, फिर भी गवर्नमेंट ने बोला कि हम इनको पनिश नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे, राइट, इस टाइम पे ऐसा कोई कायदा नहीं था, ठीक है, जिससे कि इनको पनिश किया जा सके। जब कायदा ही नहीं है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, ठीक है, जब ऐसा कोई कायदा ही नहीं है जिससे कि उसको पनिश कर सके, तो हम उसको गुनाह कैसे बोलेंगे? थोड़ी देर के इसको अलग तरीके से समझो। इमेजिन करो कि चोरी, ये गुनाह लॉ बुक्स में लिखा हुआ ही नहीं है। अगर ये लिखा हुआ ही नहीं है तो गुनाह नहीं है। गुनाह क्या है, क्राइम क्या है? जो लॉ बुक्स में लिखा हुआ है, ठीक है, जिसके ऊपर पनिशमेंट दी हुई है। अगर नहीं दी है तो फिर नहीं है। तो इस केस में भी, क्योंकि लॉ बुक्स के अंदर कुछ लिखा हुआ नहीं था, राइट, इस वजह से इनको कोर्ट ने पनिश नहीं किया। ठीक है, इसके बाद में फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काफी सारे कायदे कानून बने, और उसमें लिखा गया कि अगर कोई व्यक्ति इस तरह का काम करता है, वायरस वगैरह बनाता है, तो उसको ये सजा रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीजें हुई, इस पूरे सीन में दो चीजें हुई। पहला हुआ इन्वेस्टिगेशन, जो पुलिस वालों ने किया, ठीक है, और दूसरा हुआ रिसर्च, जो कि लॉ मेकर्स ने किया। लॉ मेकर्स ने बाद में सोचना शुरू किया, ढूंढना शुरू किया कि अब हमको कायदा बनाना है, ये प्रॉब्लम है सोसाइटी में, ये प्रॉब्लम हो सकता है कंप्यूटर से रिलेटेड, तो अब हमको इसके ऊपर कायदा बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? तो उन्होंने फिर रिसर्च करना शुरू किया, और रिसर्च करते करते फिर उन्होंने कायदा बनाया। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीजें हुई, इन्वेस्टिगेशन एज वेल एज रिसर्च। ठीक है, सो द पॉइंट हियर इज research and investigation sometimes may go hand in hand, but these are the two different concepts. ठीक है, aspects of research. Many a times, a PhD student fails to understand as to what may be the gravity or what may be the scope of research, right? What different things can be done in case of a research, right? These are the ideas. These are some of the examples as to what different ideas may be done.
एनालाइजिंग सीक्वेंस ऑफ फैक्ट्स, राइट। किसी चीज को, फैक्ट्स को स्टडी करना, कोई कोई घटनाएं हैं, उन घटनाओं को स्टडी करना, और घटनाओं के अंत में किसी उसका क्या कंक्लूजन निकलता है, उसका क्या रिजल्ट निकलता है, उसको स्टडी करना, ये रिसर्च में आ सकता है। हम यहाँ पे समाज में होने वाली घटनाओं को स्टडी कर रहे हैं और उन घटनाओं के बेसिस पे हम कुछ कंक्लूजन बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है, दैट इज वन थिंग। इसका यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया हुआ है जिलेट, जिलेट ब्लेड्स का। जिलेट ब्लेड सबको पता है, एज टू व्हाट आर जिलेट ब्लेड्स, राइट। इसका एक काफी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। हुआ ये था कि जिलेट कंपनी ने जब पहली बार जिलेट ब्लेड्स बनाए थे, तो इन्होंने शिकागो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को ये ब्लेड्स ट्राई करने के लिए दिए, यूएस में। ठीक है, उन्होंने क्या किया, स्टूडेंट्स को फ्री में ब्लेड बांटे और उनको बोला कि ये ब्लेड आप यूज करो और हमको इसका रिजल्ट बताओ, आपको बताओ कि ये कैसे लगता है, ये कंफर्टेबल है नहीं है, क्या प्रॉब्लम है, इसमें क्या इंप्रूवमेंट होने चाहिए, वगैरह वगैरह। स्टूडेंट्स ने ब्लेड यूज किया, ब्लेड्स उनको बहुत पसंद आया। ठीक है, उन्होंने बहुत अच्छे पॉजिटिव रिव्यूज दिए। ठीक है, और रिव्यूज आने के बाद में फिर कंपनी ने जो ब्लेड्स है यूएस में लॉन्च कर दिए। लॉन्च होने के बाद में ब्लेड्स काफी पॉपुलर हो गए, यूएस के काफी सारे लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया, अप्रिशिएट किया कि यह बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और बहुत इफिशियंट है, वगैरह वगैरह। ठीक है, इसको बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन मिला यूएस में। ये कंपनी ने सोचा कि क्यों ना यही प्रोडक्ट हम इंडिया में लॉन्च करें आफ्टर सम टाइम। ठीक है, इंडिया में भी हम ये प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे। इंडिया में जब इन्होंने प्रोडक्ट लॉन्च किया तो ये प्रोडक्ट शुरुआती दिनों में बुरी तरह से फेल हो गया। Right? ये प्रोडक्ट चला ही नहीं इंडिया में। ठीक है, अब क्यों नहीं चला? अब ये कंपनी इसके ऊपर रिसर्च कर रही है, सोच रही है कि यार यूएस में तो इतना हिट है प्रोडक्ट, ठीक है, यहाँ पे क्यों नहीं चल पा रहा है। तब इन्होंने सीक्वेंस ऑफ फैक्ट्स को स्टडी किया। राइट, उन्होंने क्या देखा कि यहाँ पे ये प्रोडक्ट ना चलने के पीछे सबसे बड़ा रीजन है फ्लोइंग वाटर, बहता हुआ पानी। ठीक है, ट्रेडिशनली अगर आपने देखा होगा, अगर आपको याद होगा, ठीक है, ट्रेडिशनली हम लोग ब्लेड यूज करते थे, राइट, और एक कटोरी होती थी, उसमें पानी रहता था, वो ब्लेड को पानी के अंदर साफ कर लेते थे। वो कटोरी क्यों यूज करते थे हम उसमें पानी में? क्योंकि हमारे पास नल नहीं थे, पुराने जमाने में नल का इशू था, राइट, कुओं से पानी निकलता था, घर में स्टोर करके रखते थे, तो नल से पानी आने वाला पानी, टंकियों वाला पानी, वो हमारे पास उस टाइम पे नहीं था। ठीक है, तो वो कटोरी में ब्लेड साफ करके वापस यूज करते थे। ये जो ब्लेड है ये कटोरी में साफ नहीं हो पाता था। ठीक है, तो कंपनी ने रियलाइज किया, क्योंकि क्योंकि इंडिया में फ्लोइंग वाटर नहीं है, लोगों के घरों पे, छतों पे टैंक्स नहीं है, लोग छोटे छोटे घरों में रहते हैं, झोपड़ियों में रहते हैं, उस टाइप के घर में रहते हैं जहाँ पे पानी के टैंक ऊपर नहीं, पानी के टैंक नीचे रहते हैं, जमीन के अंदर रहते हैं। राइट, पानी वहां स्टोर करते हैं वो लोग, कुएं में रहता है पानी। इसीलिए ये प्रोडक्ट यहाँ पे फेल हो गया। ठीक है, सी द सीक्वेंस ऑफ फैक्ट, एक छोटा सा एग्जाम्पल है, लेकिन आप इस तरह से रिसर्च करके पता लगा सकते हैं कि ये क्या है। ठीक है, क्या रिसर्च कैन बी कैरिड आउट विथ एन इंटेंशन टू स्टडी द सीक्वेंस ऑफ फैक्ट। कुछ चीजें दूसरे कंट्रीज में सक्सेसफुल हो जाती है, वही चीजें इंडिया में सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाती? फॉर दैट यू नीड टू हैव एन एनालिसिस ऑफ द फैक्ट्स दैट एग्जिस्ट इन इंडिया एंड इन यूएस। यू हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन द टू। सेकेंड वन इज वेरीफाइंग ओल्ड फैक्ट्स। ठीक है, जो पुराना नॉलेज है हमारे पास में, उसको स्टडी करके उसके बेसिस पे हम कोई नया नॉलेज वर्ल्ड के सामने रख सकते हैं। जैसे कि हमारे पास में ट्रेडिशनल मेडिसिन का एक एग्जाम्पल है, राइट। ट्रेडिशनल मेडिसिन हमारे पास जो घरगुती इलाज जिसको बोलेंगे, या फिर दादी माँ के नुस्खे जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे ट्रेडिशनल मेडिसिन हमारे पास है, जिससे कि हम, जिसके ऊपर रिसर्च करके कोई नया प्रोडक्ट, नया आइडिया हम डेवलप कर सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, आज के डेट में गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा फोकस है ट्रेडिशनल नॉलेज के ऊपर। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत ज्यादा फोकस कर रही है ट्रेडिशनल नॉलेज पे। उनका इंटेंशन यही है कि हमारे पास जो हमारा जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, जो पुरानी परंपराएं हैं, पुराना जो ज्ञान है हमारे पास में, उसको हम कैसे प्रिजर्व करें, उसको अलग अलग तरीके से प्रिजर्व करने की कोशिश कर रही है, राइट। देन कम्स इंटर रिलेशनशिप, दैट इज वन वे इन विच द रिसर्च कैन बी कैरिड आउट। इंटर रिलेशनशिप का मतलब है कि फॉरेन कंट्रीज के लॉज और हमारे लॉज, फॉर एग्जांपल, कि इनको हम कैसे कोरिलेट कर सकते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल लॉज, इंटरनेशनल ट्रीटीज को हम इंडिया में कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, दैट इज इंटर रिलेशनशिप। सिमिलरली फॉरेन कंट्री में अगर कोई रिसर्च सक्सेसफुल हुआ है, ठीक है, वो सोशल हो या साइंस, साइंटिफिक हो, वट एवर, ठीक है, वो रिसर्च हम इंडिया में कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, उसके ऊपर रिसर्च करना। ठीक है,
that is called as interrelationships, taking the reference of some foreign nationals into our own legal system, into our own social system. That is interrelational research can be carried out. That is one type of research. Arrive at appropriate theories, principles, doctrines. Okay. Arriving at theories, principles, doctrine. These are the more of a theoretical kind of a research. Right? Shape of Earth. अर्थ के शेप के बारे में काफी सारे मान्यताएं थी और ये टाइम टू टाइम चेंज हुए. आज हमारे पास में साइंटिफिक एडवांसमेंट्स है, वी हैव सैटेलाइट्स, वी हैव रॉकेट्स एंड एवरीथिंग. तो टुडे वी कैन से फॉर श्योर एज टू व्हाट इज द शेप ऑफ अर्थ. ठीक है. लेकिन देखो ये ओपिनियन भी कैसे चेंज हुए, ये आइडियाज भी कैसे चेंज हुए. एक टाइम था शुरुआत में जब वेस्टर्न सोसाइटी में जब एक ओपिनियन था कि जो पृथ्वी है वो सपाट है, वो फ्लैट है. ठीक है. क्रिश्चियन माइथोलॉजी, क्रिश्चियन लिटरेचर के हिसाब से अर्थ जो है वो फ्लैट नेचर की थी. ठीक है. एक ओपिनियन था कई बहुत पहले. ठीक है. फिर एक साइंटिस्ट आया, एक फिलोसोफर आया, उसने बोला अर्थ फ्लैट नहीं है, अर्थ इज राउंड इन शेप, गोलाकार है. ठीक है. दैट वाज द न्यू आइडिया दैट वाज प्रेजेंटेड ओवर द एग्जिस्टिंग सेट ऑफ नॉलेज. ठीक है. when the scientific what do you say the when the scientific investigation took place, scientific advancements took place, technology took place, right? Then the scientists started to say that the shape of the earth is oval in nature, अंडाकृति. right? अर्थ का शेप अंडाकृति है, ऊपर से थोड़ा सा खींचा हुआ है, ऊपर से नीचे से. ठीक है. लेकिन अब साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि अर्थ का शेप अंडाकृति भी नहीं है, अर्थ का शेप चेंज होता रहता है. ठीक है. कभी वो ऊपर से रहता है, कभी नीचे से रहता है, तो इट डिपेंड्स, right, upon the location of the earth in the galaxy, revolving around the sun. The point here is research can be carried out to describe certain theories, principles, or doctrines also. Right? Doctrines also. Develop new scientific tools. ठीक है. रिसर्च कैन बी कैरिड आउट टू डेवलप न्यू साइंटिफिक टूल्स ऑल्सो. अब यहाँ पे जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये कोलाइडर का एग्जाम्पल है. ठीक है. एक साइंटिफिक कोलाइडर जहाँ पे के साइंटिस्ट ने गॉड पार्टिकल की डिस्कवरी की है. राइट. ठीक है. गॉड पार्टिकल, उन्होंने एक ऐसा दो पार्टिकल्स को कोलाइड करके, टकरा करके उन्होंने एक नया पार्टिकल क्रिएट किया, दैट इज कॉल्ड, दैट दे हैव नेम्ड एज गॉड पार्टिकल एंड दे आर स्टडीइंग इट. राइट. लेकिन इस पार्टिकल की स्टडी करने के लिए उन्होंने जो साइंटिफिक टूल बनाया हुआ है दैट इज कॉल्ड एज अ कोलाइडर, जो कि स्विट्जरलैंड में है. आप रिसर्च कर सकते हैं इसके ऊपर. सो नए टूल्स बनाने के लिए भी अगर रिसर्च होती है देन दैट आल्सो विल कम अंडर कैटेगरी ऑफ रिसर्च. टू अंडरस्टैंड द अदर साइड ऑफ द फैक्ट्स, फ्रॉम माइक्रो टू मैक्रो एंड मैक्रो टू माइक्रो, टू डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी, to portray accurately the characters of particular object, situation, or group, to expand the knowledge. Many a times the student comes to me and they ask कि सर एक टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी बहुत रिसर्च हो चुका है, right? मुझे ये टॉपिक पे रिसर्च करना है लेकिन इसके ऊपर काफी ज्यादा रिसर्च ऑलरेडी हो चुका है, तो मैं क्या करूँ, मैं टॉपिक छोड़ दूँ क्या? ठीक है. तो मेरा सजेशन एक ही रहता है कि इसी इसी टॉपिक के ऊपर अगर तुमको करना ही है इसी टॉपिक पे, तो इसी टॉपिक के ऊपर आप कुछ नया दे सकते हैं, कुछ नया पर्सपेक्टिव ला सकते हैं क्या, वो देखो. अगर ला सकते हैं तो फिर करो रिसर्च इसके ऊपर. इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है ये लुंगी वाला. ठीक है. एक पॉपुलर स्टोरी, आई डोंट नो वेदर द स्टोरी इज ट्रू और फॉल्स, लेकिन एक अच्छी स्टोरी है फ्रॉम द रिसर्च परस्पेक्टिव, कि एक जीन्स बनाने वाली कंपनी ने डिसाइड किया कि वो साउथ इंडिया के किसी एक सिटी में जा करके अपने जीन्स को लॉन्च करेंगे. वहां पे जीन्स अभी तक उनकी गई नहीं थी, उनका प्रोडक्ट वहां तक गया नहीं था. ठीक है. तो उन्होंने सोचा कि यहाँ पे हम जीन्स को लॉन्च करेंगे. सो व्हाट दे डिड, उन्होंने अपने एक रिसर्चर को भेजा, उसको बोला कि तुम वहां जाओ, वहां जा करके पता लगाओ कि वहां पे मार्केट कैसा है, मार्केट की कंडीशंस कैसे है, और हम वहां पे जीन्स लॉन्च कर सकते हैं क्या. ठीक है. वो वहां पे गया, वहां पे घूमा, सिटी में घूमा. उस सिटी में घूमने के बाद में उसने नोटिस किया कि यहाँ पे सब लोग लुंगी पहन के घूम रहे हैं. ठीक है. जनरली साउथ में वो कल्चर था पहले कि वो लुंगी पहनते थे, अभी भी है. ठीक है. वो काफी कम हो गया है, बट एनीवेज. सो वहां पे उसने देखा कि सभी लोग लुंगी पहन करके घूम रहे हैं. वो वापस आया कंपनी में आकर के उसने रिपोर्ट किया कि हम उस गांव में जीन्स लॉन्च नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि वहां पे कोई भी जीन्स नहीं पहनता है, वहां पे सब लोग लुंगी पहनना प्रिफर करते हैं. ये उसने रिपोर्ट कर दिया. ठीक है. इसलिए हम वहां पे प्रोडक्ट लॉन्च नहीं कर सकते. हमारा प्रोडक्ट अगर हम लॉन्च करते तो प्रोडक्ट फेल हो जाएगा.
ऐसा उसने रिपोर्ट बना करके कंपनी को सबमिट कर दिया। ठीक है, कंपनी ने सोचा कि चलो एक ओपिनियन तो हमने ले लिया है, एक और ओपिनियन लेके देखते हैं। उन्होंने दूसरे रिसर्चर को भेजा, राइट। दूसरे रिसर्चर को भी वही टास्क दिया कि जाके देखो हम वहां पे प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं। दूसरा रिसर्चर वहां पे गया, उसने पूरी चीज स्टडी की, उसने पूरी चीज देखी वहां पर। ठीक है, और देखने के बाद में उसने रिपोर्ट ला, वापस आने के बाद में कंपनी को रिपोर्ट किया कि उस शहर में सभी लोग लुंगी पहनते हैं, वहां पे कोई भी जीन्स नहीं पहनता, इसलिए हमारे प्रोडक्ट को वहां पे बहुत ज्यादा डिमांड आ सकता है। हमको इमीडिएटली वो प्रोडक्ट वहां पे लॉन्च करना है, लॉन्च करना चाहिए। वहां पे लोगों को पता नहीं है जीन्स क्या है और कितनी कंफर्टेबल है। ठीक है, इसलिए हमने इमीडिएटली वहां पे प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए, तो हमारा प्रोडक्ट वहां पे सक्सेसफुल हो जाएगा। सी, लुक एट द डिफरेंट परस्पेक्टिव, राइट। एक टॉपिक के ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्च हुआ हुआ हो सकता है, ठीक है, लेकिन हाउ यू लुक एट द सिचुएशन, हाउ व्हाट न्यू सॉल्यूशन यू गिव टू द प्रॉब्लम, दैट मेक्स ऑल द डिफरेंस, राइट। एक रिसर्चर बोल रहा है वहां पे जीन्स लॉन्च नहीं कर सकते, और दूसरा बोल रहा है वहां पे जीन्स इमीडिएटली लॉन्च करनी चाहिए, हमारा प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए, वहां पे बहुत स्कोप है उसका, राइट। सो देर इज अ टोटली अपोजिट काइंड ऑफ एन व्यू दैट मे कम इनटू एग्जिस्टेंस, राइट। From micro to macro, macro to micro, this is one of the ways in which the researches are carried out। ठीक है, या तो आप छोटी चीज को पकड़ के कोई बड़ी चीज को समझो, या फिर बड़ी चीज को पकड़ के कोई छोटी चीज को एनालाइज करो। जो मैंने आपको लास्ट इमेज में कोलाइडर का जो इमेज बताया था, राइट, ये जो कोलाइडर वाला जो इमेज है, राइट, यहाँ पे ये लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये लोग माइन्यूट पार्टिकल्स की स्टडी करके, ठीक है, छोटे से पार्टिकल की स्टडी करके ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ब्रह्मांड एग्जिस्टेंस में कैसे है, राइट। पूरा का पूरा जो यूनिवर्स है, गैलेक्सीज है, ये एग्जिस्टेंस में कैसे आए, ये उस मशीन के थ्रू वो छोटे से पार्टिकल्स को स्टडी करके पता लगाने की कोशिश करें। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ माइक्रो टू मैक्रो, right? So research can be carried out in this way also to determine the frequency with which events occurs। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रेसिडिविस्ट, रेसिडिविस्ट का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो बार बार गुनाह कर रहा है, राइट। ही इज रिपीटेडली कैरिंग आउट रॉन्गफुल एक्ट्स, उसको बार बार पनिशमेंट हो रही है, बार बार जेल में डाल रहे, बार बार समझा रहे, ठीक है, बहुत कोशिश कर रहे हैं उसको सुधारने के लिए, वो सुधर नहीं पा रहा, वो जेल से बाहर आने के बाद फिर से गुनहगारी में चला जाता है। तो क्यों जा रहा है, एक ही चीज बार बार क्यों हो रही है, राइट। डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इवेंट्स, ये क्यों हो रहा है, इसकी स्टडी भी रेसिडिविज्म में आ सकती है। एक ही चीज बार बार हो रही है तो उसके ऊपर भी रिसर्च हो सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं, ऐसा बोल के नहीं चलेगा कि ये तो होता ही रहता है या फिर ये तो कॉमन है। ठीक है, इसकी ये क्यों है, इसके ऊपर भी रिसर्च हो सकती है। टू पोर्ट्रे एक्यूरेटली द कैरेक्टर्स ऑफ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, सिचुएशन और ग्रुप। ठीक है, किसी का कैरेक्टर डिसाइड करना है, किसी का पर्सनैलिटी डिसाइड करनी है, नेचर डिसाइड करना है, ठीक है, स्टडी करना है उसको, तो फिर वो भी रिसर्च के कैटेगरी में आ सकता है, राइट। टू एक्सपैंड द नॉलेज ऑफ द एग्जिस्टिंग फील्ड, दैट इज समथिंग दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ रिसर्चेस। ओके, सी, as far as the types of researches are concerned, there are so many different types, बहुत सारे टाइप्स हैं। ठीक है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग टाइप के रिसर्चेस दिए हुए हैं। ये जो स्लाइड आपके सामने है, ये जस्ट एन एग्जाम्पल है, right? It is just an illustrative list as to what are the different types of researches that you will find in different books, and हर एक टाइप का एक अलग इंपॉर्टेंस है, एक अलग रिलेवेंस है, राइट। ऐसा हो सकता है कुछ सिचुएशंस में कि एक या दो से ज्यादा टाइप्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है, दो या दो से ज्यादा टाइप्स एक साथ आ सकते हैं। ठीक है, कहीं कहीं पे क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च हो सकता है, कहीं कहीं पे एक्शन एंड लेबोरेटरी रिसर्च हो सकता है। ठीक है, जो आपको लिस्ट में दिख रहे हैं नाम। ठीक है, तो दो रिसर्च एक साथ आ सकते हैं, देयर इज नो स्ट्रिक्ट कंपार्टमेंटाइजेशन कि एक रिसर्च होगा तो दूसरा हो ही नहीं सकता, राइट। एक से ज्यादा रिसर्चेस किसी एक पर्टिकुलर रिसर्च में आ सकते हैं, राइट, बट इनको अलग अलग पढ़ो, अलग अलग समझो, तो फिर ज्यादा क्लियरिटी आएगा। ठीक है, और बाद में फिर एक बार समझ में आ गया तो आप इसको मिक्स कर सकते हैं। ठीक है, सो देर आर different researches: fundamental, qualitative, quantitative, etc. You can read the list later on if you want. Okay, we'll go on with the researches. Right. Qualitative and quantitative research. Qualitative
क्वालिटी, क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी। ठीक है। क्वालिटेटिव में नेचर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेचर मतलब प्रकृति नहीं, ठीक है, एक आदमी का नेचर या फिर किसी चीज पर्टिकुलर, एक किसी का कैरेक्टरिस्टिक्स। क्वालिटेटिव में नेचर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वांटिटेटिव में नंबर या फिगर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। मैंने एग्जाम्पल दिया हुआ है रेसिडिविस्ट। रेसिडिविस्ट मतलब हैबिचुअल ऑफेंडर, ऐसा व्यक्ति जो बार बार गुनाह कर रहा है, हैबिचुअल ऑफेंडर। ठीक है। अब हम हैबिचुअल ऑफेंडर की अगर बात करेंगे तो ये एक आदमी की प्रकृति है, राइट, ये एक आदमी का कैरेक्टर है, एक आदमी का नेचर है। अगर हम किसी ऑफेंडर का नेचर स्टडी कर रहे हैं तो वो क्वालिटेटिव रिसर्च के कैटेगरी में आएगा। ठीक है। बच्चे कैसे बिहेव करते हैं, बच्चों को अगर खिलौना दो तो वो कैसे बिहेव करेंगे, ये अगर स्टडी करना है तो ये क्वालिटेटिव रिसर्च का पार्ट है। ठीक है। क्वालिटेटिव रिसर्च का पार्ट है। एक एम्प्लॉय रिवॉर्ड के लिए कितना इफिशिएंटली काम कर सकता है, या फिर एक लेबर बोनस के लिए कितना इफिशिएंटली काम कर सकता है। ठीक है। ये क्वालिटेटिव रिसर्च का पार्ट है। ओके। क्वांटिटेटिव रिसर्च इज मोर न्यूमेरिकल इन नेचर। फॉर एग्जांपल पोल्यूशन लेवल्स, के मुंबई में आज के डेट में पोल्यूशन कितना है, ये नंबर्स का पार्ट है। ठीक है। ये डेटा का पार्ट है, नंबर न्यूमेरिकल फॉर्म में रहेगा। सो क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च में सबसे बड़ा डिफरेंस है कि क्वालिटेटिव रिसर्च बेसिकली स्पीक्स अबाउट द क्वालिटी ऑफ ए पर्सन और अ थिंग। ठीक है। whereas quantitative research is more focused about numerical abilities, analysis of just a minute. Okay. Okay. So quality as well as numericals. Anyways, so analysis of, okay, analysis of personality trends, customs. ठीक है, recording and analyzing behavior. Behavior is important, understanding underlying reasons behind the phenomenon. ठीक है, that comes under the category of qualitative research. Quantitative में analysis of data, right, generalization of data, drawing the conclusions out of the data that we have. ठीक है, usually small number of people. When we talk about sample sizes, in case of qualitative research, less number of people are taken into consideration. थोड़े से लोगों को स्टडी करके आपको समझ में आ जाएगा कि क्या प्रॉब्लम है या फिर क्या डेटा कलेक्ट हुआ है। जैसे अगर मुझे हैबिचुअल ऑफेंडर्स के ऊपर स्टडी करना है तो फिर इस केस में मैं सिर्फ कुछ जेल्स को विजिट करके वहां के कैदियों को स्टडी करके, ठीक है, जो हैबिचुअल ऑफेंडर कैदियों में भी जो बार बार जेल में आते हैं उनको स्टडी करके मैं अपना डेटा बना सकता हूँ, अपना रिसर्च कंप्लीट कर सकता हूँ। लेकिन क्वांटिटेटिव में बहुत ज्यादा डेटा कलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है। अब जैसे पोल्यूशन के केस में मुझे मुंबई के हर एक व्हाट डू से एरिया में जा करके पोल्यूशन के सैंपल्स लेने पड़ेंगे। ठीक है। इंडस्ट्रियल एरिया का अलग, फिर बाद में फिर रेसिडेंशियल एरियाज के अलग और कमर्शियल एरियाज का अलग सैंपलिंग, हर चौक का एक सैंपल अलग लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे डेटा कलेक्शन ज्यादा हो जाता है। इन केस ऑफ क्वांटिटेटिव वी हैव टू टेक लॉट ऑफ डेटा। डेटा कलेक्शन में क्वालिटेटिव में इंटरव्यूज, ऑब्जर्वेशन, एक्सपर्ट ओपिनियंस, whereas in case of quantitative, different types of tools, techniques, laboratories may be required. Data analysis में in case of qualitative to identify patterns, features, elements, nature. This is something that you can analyze just by applying your own logic or some scientific principles. Qualitative research में data analysis करना comparatively थोड़ा सा easy होता है, quantitative में थोड़ा सा technical होता है. If you use the softwares and techniques, then then also it is a bit technical in nature. ठीक है। आउटकम क्या रहेगा क्वालिटेटिव का? रिपोर्ट्स विथ डिस्क्रिप्शन। ठीक है। इसका रिपोर्ट बनेगा, डिस्क्रिप्शन बनेगा इसका कि क्या, क्यों, किस रीजन से एक रेसिडिविस्ट, एक आदमी कट्टर गुनहगार बन सकता है। ठीक है। वो डिस्क्रिप्शन फॉर्म में रहेगा। क्वालिटेटिव मोर, इट इज मोर इन फॉर्म ऑफ डेटा स्टैटिस्टिक्स, राइट, व्हाट डू से टेबल्स एंड डायग्राम्स एंड ग्राफ्स एंड एवरीथिंग। ठीक है। तो दोनों का प्रेजेंटेशन भी अलग रहेगा। ओके। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। सी, one of the famous criminologists in the field of law, Cesare Limroso, इन्होंने कितना डिटेल क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस किया। ठीक है। इन्होंने गुनहगारों की स्टडी की। ठीक है। उनके पूरे सैंपल्स कलेक्ट किए उन्होंने, जो
हथियार थे उनके वो कलेक्ट किए, उनके जो स्कल्स थे, उनके जो बॉडी पार्ट्स थे वो कलेक्ट किया, और उन्होंने खुद का एक म्यूजियम बनाया। म्यूजियम का नाम मैंने नीचे लिखा हुआ है, आप बाद में देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन इनका कंक्लूजन एट द एंड ये था कि एक आदमी पैदाइशी गुनहगार हो सकता है। पहला स्टेटमेंट था इनका कि एक आदमी पैदाइशी गुनहगार हो सकता है। आज हम नहीं मानते इस चीज को, ठीक है, लेकिन इनका ओपिनियन ये था। और दूसरा इनका ओपिनियन ये था कि एक आदमी को देख करके आप पता लगा सकते हैं कि ये गुनहगार है या नहीं है। उन्होंने एक पूरा का पूरा डिस्क्रिप्टिव डेटा दिया हुआ है कि एक गुनहगार टाइप का आदमी, राइट, वो कैसा दिखता है, उसकी नाक कैसी रहती है, उसकी आंखें कैसी होती है, उसका जबड़ा कैसे होता है, उसके कान कैसे होते हैं, राइट, वो सब उन्होंने डिटेल में दिया हुआ है। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च, राइट। यहाँ पे उन्होंने काफी सारा डेटा कलेक्ट भी किया हुआ है, ठीक है, लेकिन इट कम्स अंडर कैटेगरी ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। ठीक है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च। जैसा मैंने पोल्यूशन का बताया था कि गवर्नमेंट अलग अलग लोकेशंस पे पोल्यूशन के डेटा कलेक्ट करती है और वो इस तरह से डिस्प्ले करेगी। ये चीज आपको कई जगहों पे देखने को मिलेगी, इवन इन मुंबई में भी है, पूना में भी है, कई सारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज में मिलेगा कि चौक में लगा होगा कि उस चौक में, राइट, उस चौरस्ते पर इस उस टाइम पे कितना पोल्यूशन है, राइट, उस टाइम पे कितना पोल्यूशन है, ये वहां पे क्लियर पता रहेगा। ठीक है, तो ये एक यही एग्जाम्पल है क्वांटिटेटिव रिसर्च का। ठीक है, now there is doctrinal research, non-doctrinal research. Doctrinal research, as I said earlier, right, it is a kind of a research in which a person is required to follow the secondary data, right. सेकेंडरी डेटा यूज करके आप रिसर्च कंप्लीट कर सकते हैं। यू नीड नॉट गो एक्चुअली इनटू द फील्ड, राइट, यू नीड नॉट गो, यू नीड नॉट मीट द पीपल, यू नीड नॉट कलेक्ट द डेटा फ्रॉम द फील्ड। ठीक है, फील्ड वर्क इसमें नहीं होता है डॉक्ट्रिनल रिसर्च में, राइट। डॉक्ट्रिनल रिसर्च में जस्ट बाय रेफरिंग द लिटरेचर, बाय रेफरिंग द बुक्स, रिसर्च कैन बी कैरिड आउट। लीगल फील्ड में, लॉ में जनरली जो जो व्हाट इज research होता है, that is more of a doctrinal in nature, because we refer the laws, we refer the court judgments, we refer international treaties, and we carry out the research। ठीक है, तो लॉ फील्ड में कई बार ज्यादातर डेट जो रिसर्च होता है वो डॉक्ट्रिनल होता है, लेकिन कई बार नॉन डॉक्ट्रिनल भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट का जो एग्जांपल मैंने अभी दिया था, ठीक है, जहाँ पे आपको एक्चुअली स्कूल्स में जाना है, एक्चुअली डेटा कलेक्ट करना है, लोगों से मिलना है, बात करना है। ठीक है, सो दैट इज नॉन डॉक्ट्रिनल। सो डॉक्ट्रिनल बेसिकली रेफर्स टू सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा। ठीक है, जैसे अगर किसी इंग्लिश के स्टूडेंट को, अगर पीएचडी करना है इंग्लिश में, ठीक है, एंड ही टेक्स द टॉपिक राइटिंग्स ऑफ शेक्सपियर, और टू बी मोर स्पेसिफिक रोमियो एंड जूलियट बाय शेक्सपियर, इसके ऊपर अगर उसको रिसर्च करना है, तो उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी से मिलने की जरूरत नहीं है, राइट। वो सिर्फ लिटरेचर ही रेफर करेगा कि अलग अलग ऑथर्स ने किसने किसने इसके ऊपर काम किया है, ठीक है, उनके क्या ओपिनियंस है, शेक्सपियर कौन था, उसकी हिस्ट्री क्या है, राइट। ही कैन डू ऑल दिस रिसर्च बाय सिटिंग इन द लाइब्रेरी इटसेल्फ। So that will come under the category of doctrinal research. Non-doctrinal research, राइट, नॉन डॉक्ट्रिनल रिसर्च में आपको फील्ड में जाना है, वहां पे डेटा कलेक्ट करना है, ठीक है, एक्चुअली डेटा वहां से निकालना है। You have to carry out different experiments, you have to meet different people, you have to use different techniques, and if you do that, then it will come under the category of non doctrinal research। ठीक है, राहुल गांधी आजकल एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हैं दैट इफ ही कम्स इनटू द पावर देन ही विल कैरी आउट कास्ट सेंसस, right, he will carry out caste census। So caste census is, या फिर census is an example of non doctrinal research। You have to actually go into the public, you have to actually collect all the data, right, you have to actually find out as to where the population is increasing, where the population is decreasing, what caste population is increasing, what caste population is decreasing, and so on, right। So caste census या फिर census is an example of non doctrinal kind of a research। Then there comes descriptive research and there is analytical research। Descriptive research, description, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में जनरली आप किसी रिसर्च का डिस्क्रिप्शन मेंशन करते हैं, राइट। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। You must be knowing about this, that this is the scheme of the central government wherein gas cylinders are provided to the people, right? Now if a person wants to do a research as to who are the beneficiaries of this scheme, as to whether this scheme is successful or not, right, how many people were able to get benefit out of this scheme,
अगर किसी को ये रिसर्च करना है, then he will go for descriptive research. He will go into the market, he will search for the people, and he will prepare a report. Right. For example, in Nanded district, let's say 5,000 people got the benefit of Ujjwala Yojana. In Parbhani district, 3,000 people got the benefit of the Yojana. And thus such kind of data will be prepared, the report will be prepared. So that will come under the category of descriptive research. Here you are not trying to create something new, right? Here you are not trying to add something new to the existing set of knowledge. You are just collecting the information. You are just giving the information to the government. You are preparing a project report, kind of a report. It will come under the category of descriptive research. Analytical research, where the analysis is required to be done, right? Analysis, the uh, collection of the information and the analysis is required to be done, right? If you look at the image itself, you can see that this image is about the Indian traders in stock market, right? So the data is already available with the SEBI, right? Available with the different service providers like Zerodha, right? Angel Broking. They have all the data of the users, of the people who are using their platform to carry out trading activity, right? So data is already there, but here analysis is required to be there. How many are male? How many are female? Right? What is the age criteria? How much percentage a person is earning in a stock market? How many people are losing their money in the stock market? Right? This analysis will come under the category of analytical research, where the analysis of the existing set of data is carried out. Right? That will be analytical research. Then there is applied research and fundamental research. Applied research, finding a solution to the immediate problem, the problem that is existing in the society. Finding a solution to that problem. If such type of research is carried out, it is called as applied research. मतलब कि immediately कोई problem create हो गया है society में और उसको solve करना है, तो वो होगा applied research. जैसे इंडिया में कोविड का प्रॉब्लम आ गया था, थ्रू आउट द वर्ल्ड कोविड का प्रॉब्लम शुरू हो गया था, राइट? और काफी सारे लोग उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे. दैट टाइप ऑफ रिसर्च इज कंसिडर्ड एज अप्लाइड रिसर्च. ओके, मतलब इमीडिएट प्रॉब्लम है और उसका इमीडिएट सोल्यूशन चाहिए, राइट? PM Narendra Modi came up with an idea of demonetization. Right? He was of the opinion that majority of the problems that we see in our society at that point of time that we see in our society is because of black money. People have lot of black money. People have lot of fake money in the market. Right? Therefore, we need to ban that money. That was some, and that money is used for different activities like corruption, like terrorism, and so many different things. Therefore, to curb that problem, we need to demonetize सर्टन करेंसी नोट्स. और उन्होंने 500 और 1000 के नोट बैन कर दिए. पर आगे हुआ क्या? 500 और 2000 के नोट आ गए. अब पता नहीं प्रॉब्लम कितना सॉल्व हुआ और क्या सॉल्व हुआ उसका, बट दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी. ठीक है, बट दैट इज एन एग्जांपल ऑफ अप्लाइड रिसर्च. देन कम्स फंडामेंटल रिसर्च और प्योर रिसर्च. फंडामेंटल रिसर्च और प्योर रिसर्च. जो इमेज आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वो है सेंट थॉमस एक्विलिस, क्रिमिनोलॉजी के एक पॉपुलर ऑथर. ठीक है, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था. इन्होंने बताया था कि क्राइम होता क्यों है. ठीक है, क्राइम क्यों होता है. उनका स्टेटमेंट ये था कि क्राइम इज अ रिजल्ट ऑफ डेमोनोलॉजी, विच क्राफ्टिंग एंड सुपरनेचुरल पावर्स. क्राइम इज रिजल्ट ऑफ डेमोनोलॉजी, विच क्राफ्टिंग एंड सुपरनेचुरल पावर. मतलब ये कि जो एक आदमी जो गुनहगार बनता है, उसके गुनहगार बनने के पीछे ये तीन रीजन है. डेमोनोलॉजी, राइट, भूत बाधा, विच क्राफ्टिंग, जादू टोना, एंड सुपर पावर, राइट, कुछ प्राकृतिक अप्राकृतिक घटनाएं. ये तीन रीजन उन्होंने बताए थे कि ये तीन रीजन की वजह से एक आदमी गुनाह कर बैठता है. ये चर्च के फादर थे. ठीक है, इनका पॉइंट ऑफ व्यू अलग था और इन्होंने प्रेजेंट किया ओपिनियन. इन्होंने प्रेजेंट किया और लोगों ने मान भी लिया. ठीक है, अगर थोड़ा सा वेस्टर्न सोसाइटी निकाल करके आप अगर देखेंगे, हिस्ट्री निकाल करके देखेंगे, तो वहां पे विच क्राफ्टिंग के नाम पे बहुत ज्यादा एट्रोसिटीज हुए हैं. ठीक है, खास करके वुमेन के अगेंस्ट में. ठीक है, ऐसा माना जाता था कि विमेन, औरतें जो होती है वही जादू टोना कर सकती है. और इस वजह से वेस्टर्न सोसाइटी में काफी बड़े पैमाने पे एग्जीक्यूशन हुए विमेन के ऑन द चार्जेस ऑफ विच क्राफ्टिंग. बट एनीवेज, दैट वाज एन आइडिया. पॉइंट हियर इज different researchers may come up with certain ideas, certain theories,
right? That may be pure in nature, then it is called as fundamental research. आज के डेट में कुछ फिलोसोफर्स, राइट, का ये ओपिनियन है, अगर हम टाइम की स्पीड से चले, राइट, तो हम समय में आगे जा सकते हैं। ठीक है, ठीक है। कौन से साइंटिस्ट है वो, क्या नाम है उनका? एक पॉपुलर साइंटिस्ट है, स्टीवन स्पीलबर्ग नहीं, वो तो ये है। But anyways, there is one popular scientist who has come up with an idea that we can go into the future, we can time travel। ये पर ये अभी प्योर रिसर्च के कैटेगरी में, ये अभी फंडामेंटल रिसर्च है, ये एक्चुअली किसी ने किया नहीं है, राइट? सो फंडामेंटल रिसर्च इज अ प्योर काइंड ऑफ रिसर्च दैट इज मोर जनरल इन नेचर। देन कम्स कोर करेक्शनल रिसर्च। ठीक है, स्टडी हैज टू डिस्कवरी और एस्टेब्लिश द एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप, association, intent, dependence between two or more aspects of a situation। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है हमारा फूड पिरामिड। को रिलेशनल रिसर्च, कैसे को रिलेटेड है एक चीज दूसरे चीज से, कैसे को रिलेटेड है, दैट इज समथिंग विच इज विजिबल इन केस, अगर ऐसा कोई रिसर्च करता है तो देन इट इज कंसिडर्ड एज अ को रिलेशन। ठीक है, एक चीज दूसरे चीज को कैसे अफेक्ट करती है, जंगल में एक पूरा का पूरा हैबिटेट कैसे डेवलप होता है, राइट? What is single population, what is individual, what is population, what is a herd, ठीक है, how the trees grow, right? What role does a tree play in balancing the nature, ये जो इंटर रिलेशनशिप है, that will be considered as co-relational research, right? That is co-relational research। Then there is explanatory research, right? Attempts to clarify, right, clarify why and how there is a relationship between two aspects or two situations, right? When you are trying to find the reason behind a particular thing, something which has happened, you are trying to find the reason behind that particular thing, it is more of an explanatory research, you try to give explanation to as to why this thing is happening, right? That is called as explanatory research। आज के डेट में काफी पॉपुलर स्टेटमेंट है, मतलब ये चीज फिलहाल फंडामेंटल रिसर्च के कैटेगरी में, कि जिन लोगों को कोविड हुआ था उन लोगों को हार्ट अटैक ज्यादा आ रहा है। सुना होगा आपने, जिन लोगों को कोविड हुआ था या फिर जिन लोगों ने उस टाइम पे जो सीरम्स वगैरह लिए थे, राइट, उन लोगों को हार्ट अटैक ज्यादा आ रहा है। तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है, इसके पीछे की जो स्टडी है, दैट इज मोर ऑफ एन एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, राइट? एक्सप्लेनेटरी रिसर्च है कि एक्सप्लेन कर रहे कि एक आदमी को हार्ट अटैक क्यों आ रहा है, क्योंकि उस टाइम पे कोविड हुआ था, कोविड के टाइम पे बॉडी वीक हो गई थी, उसने काफी सारे एंटीबॉडीज एंटीबायोटिक्स वगैरह लिया था, ठीक है। एंड क्या बोलते हैं उसको, सबने लिया था वो, गवर्नमेंट ने कंपलसरी किया था, क्या वर्ड है उसके लिए, कैन एनीबॉडी रिकॉल दैट? वैक्सीन्स, राइट। ओके, आई फॉरगॉट दैट वर्ड। ओके, वैक्सीन्स। सो जो वैक्सीन्स थे, तो किसी किसी का ओपिनियन ये है कि वैक्सीन जो हमने लिए थे वो उस टाइम पे कोविशील्ड वगैरह, ठीक है, कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड, तो उस वजह से हार्ट अटैक्स बढ़ गए। तो ये जो रिसर्च है, ये जिस किसी ने भी पब्लिश किया है, दैट इज मोर ऑफ एन एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। ठीक है, उन्होंने लैबोरेटरी रिसर्चेस भी किए होंगे, बट इट दैट विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। ओके, देन देयर इज प्रैग्मेटिक अप्रोच। ओके, pragmatic approach, then participatory approach। Pragmatic approach, it is a mixed kind of a method, ठीक है, researcher has the freedom to use any of the method and proceed typically and procedure he can follow। ठीक है, सो बेसिकली जहाँ पे कि कोई एक मेथड यूज करना फिजिबल नहीं है, लॉजिकल नहीं है, वहां पे pragmatic अप्रोच आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी क्लास में स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस अगर इम्प्रूव करना है, तो वहां पे कोई एक मेथड काम नहीं आएगी। छोटे बच्चों का एग्जाम्पल है, छोटे बच्चों का अगर क्लास है, राइट, उस क्लास में अगर बच्चों का परफॉर्मेंस इंप्रूव करना है, तो सिर्फ एक मेथड काम नहीं आएगी वहां पे एक मेथड, फॉर एग्जांपल सिर्फ टीचिंग काम नहीं आएगी कि बस टीचर बोलता जा रहा है और बच्चे सुनते जा रहे हैं, राइट, वहां पे वो मेथड काम नहीं आएगी। वहां पे टीचर को अलग अलग मेथड्स यूज करना पड़ेगा, वहां पे टीचर्स को लेक्चर यूज करना पड़ेगा, वहां पे टीचर्स को पार्टिसिपेशन करना पड़ेगा, वहां पे स्टोरी टेलिंग चलेगी, वहां पे ग्रुप डिस्कशन चलेगा, वहां पे एक्टिविटी चलेगी, राइट, वहां पे करंट इवेंट्स चलेंगे, बहुत सारी चीजें चलेंगी।
सो जहाँ पे किसी रिसर्च में अगर एक से ज्यादा मेथड्स यूज हो रहे हैं, देन इट इज कंसिडर्ड एज अ pragmatic अप्रोच, pragmatic रिसर्च. ठीक है. Then there is a participatory approach. Participatory approach where the researcher himself is actually participating in the research. ठीक है. जनरली रिसर्चर ने ऑब्जर्वेटिव होना चाहिए. ठीक है, उसने सिर्फ ऑब्जर्व करना चाहिए कि चीजें क्या हो रही है, कैसे हो रही है, उसने खुद ने पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए. बट इफ द रिसर्च डिमांड्स दैट ही ऑल्सो पार्टिसिपेट्स, ठीक है, देन ही कैन पार्टिसिपेट एंड ही कैन कैरी आउट द रिसर्च. दैट विल बी कंसिडर्ड एज पार्टिसिपेटरी रिसर्च. बहुत सारे केसेस में, बहुत सारे टाइप के रिसर्चेस में ये चीज अलाउड नहीं है, नहीं होना चाहिए. ठीक है. लेकिन कई कई बार कुछ लोग कर लेते हैं, या फिर उनका रिसर्च उस टाइप का रहता है कि उनको पार्टिसिपेट करना पड़ता है. सो दे डू पार्टिसिपेट इन इट, राइट. बाय पार्टिसिपेशन, बाय वे ऑफ डिफरेंट मेथड, बाय वे ऑफ डिफरेंट आइडियाज. ठीक है. इन केस ऑफ लॉ, इन द लॉ फील्ड, ठीक है, one of the examples of participatory research is a person is trying to find out the white collar crimes, or let's say blue collar crime. Let's say a person wants to study the what do you say, the social status of a criminal. ठीक है. अब वो क्रिमिनल के सोशल स्टेटस का उसके ऊपर, उस क्रिमिनल के ऊपर कैसे असर होता है, ये अगर देखना है, राइट. तो ये रिसर्चर क्या कर रहा है, ये खुद वहां पे जाके रह रहा है. ठीक है. उस लोकेलिटी में, उस बस्ती में जाकर के रह रहा है, वहां के लोगों से बातचीत कर रहा है. ठीक है. वो बोल नहीं रहा है कि वो रिसर्चर है, बस उनके साथ में रह करके उनको चीजों को समझने की कोशिश कर रहा है. ठीक है. और वो अपना रिपोर्ट तैयार कर रहा है. दैट इज कॉल्ड एज पार्टिसिपेटरी रिसर्च, वेयर द पर्सन इज एक्चुअली getting into the research activity. Okay. Then there is inductive and deductive research. Inductive research going from specific to general, and deductive going from general to specific. ठीक है. जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, माइक्रो से मैक्रो, मैक्रो से माइक्रो, राइट. तो दैट इज आल्सो कॉल्ड एज इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रिसर्च. द टाइटल गिवन टू दिस, दैट इज इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रिसर्च. आप किसी बड़ी चीज को स्टडी करके उसको छोटे लेवल पे ला रहे हैं, राइट. इट इज इंडक्टिव रिसर्च, सॉरी डिडक्टिव रिसर्च. लेकिन अगर किसी छोटी चीज को स्टडी करके आप बड़ी चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज इंडक्टिव रिसर्च, राइट. फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, राइट. if you are if you, for example, anatomy of a human being, ठीक है, specific to general. If you are studying the how a cell functions in a human body, you will get an idea about how a human body functions, right. डिडक्टिव मेथड फ्रॉम जनरल इंफॉर्मेशन टू स्पेसिफिक कंक्लूजन्स. ठीक है. जो आज के डेट में हम देख रहे हैं, इसका करंट एग्जांपल अगर हम देखेंगे तो भारत बंद का. द सुप्रीम कोर्ट केम अप विथ एन आइडिया दैट सिंपली बाय, instead of simply considering SC status of a person, subcategories should be given preference. Subcategories should be taken into consideration, and the reservation should be given to the subcategories also. मतलब एक तरह से रोटेशन बेसिस पे हम रिजर्वेशन देंगे. ठीक है. SC ST कैटेगरी में अगर सब कैटेगरीज, लेट से A to Z अगर सब कैटेगरीज है, तो पहले ए को मिलेगा. ए को मिल गया है, फिर बी को मिलेगा, बी को खत्म हो गया, फिर सी को मिलेगा, फिर ए को नहीं मिलेगा, राइट. दैट इज समथिंग दैट इज रिक्वायर्ड टू बी फॉलो, और इसके ऊपर काफी ज्यादा प्रोटेस्ट भी हो रहा है. ठीक है. बट इफ दिस टाइप ऑफ रिजर्वेशन पॉलिसी इज एक्चुअली इम्प्लीमेंटेड, अगर होता है, then it will be an example of deductive research from general to specific. Previously, in general, SC category was given reservation either in education or in employment. But if specific categories are taken into consideration, then specific categories will get the reservation, and it will be more of a deductive research. Then there is ex post facto research, right? Ex post facto research, empirical study. The researcher does not to have direct control on independent variables. Basically, it means that here the researcher does not have control over the variables, over the situations that he is studying, right. हेल स्टॉर्म का, अब जैसे एग्जांपल यहाँ पे हेल स्टॉर्म का क्रॉप्स के ऊपर क्या असर होता है, ठीक है. ये अगर स्टडी करना है, तो ना हेल स्टॉर्म रिसर्चर के कंट्रोल में है, ना क्रॉप्स रिसर्चर के कंट्रोल में है. ठीक है. उसको सिर्फ स्टडी करना है, देन इट विल बी कंसिडर्ड एज अ एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च. ठीक है. इट विल कम अंडर दिस कैटेगरी. कई बार चीजें रिसर्चर के कंट्रोल में होती है, जैसे एक टीचर और एक चाइल्ड. ठीक है. टीचर को अगर बच्चों पे रिसर्च करना है, तो बच्चे टीचर के कंट्रोल में. ठीक है. तो कई बार जो वेरिएबल्स है, जो सिचुएशंस है, वो
रिसर्च के कंट्रोल में होती है और कई बार नहीं होती है, ठीक है, दैट ऑल्सो विल सी. Then this is some more classification about research. I think we are short of time now. Okay. This is more classification about research, classification by way of purpose, classification by way of methods. ठीक है, more classification: basic research, applied research, action research, evaluation research, developmental, historical, correlation, casual, experimental, and descriptive. And as I said, different books, different authors have explained research in their own different ways. Right? Once you get an idea about what is a basic idea about a particular type of research, then you will get an idea as to what are the different names that are used for the research. बेसिक आइडिया समझ लो, बेसिक फिलोसॉफी समझ लो रिसर्च की, ठीक है. बाद में उन्होंने कैसे कैसे एक्सप्लेन किया, अलग अलग तरीकों से एक्सप्लेन किया, आप उसके डिटेल में जा सकते हो, ठीक है. इनमें से कई सारी चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है, ठीक है, बाय वे ऑफ क्लासिफिकेशन, right? Basic research or pure research that we have already discussed. Applied research, applying or testing of the knowledge, right? That is something that we have discussed. Born criminal theory हमने डिस्कस की है. सिसारे लिम्ब्रोजो ने सजेस्ट किया था, a person can be a born criminal, but ये सिर्फ थ्योरी था, ठीक है. ये आज तक कोई प्रूव नहीं कर पाया कि एक आदमी पैदाइशी गुनहगार कैसे हो सकता है, ठीक है. आज के डेट में हम क्या मान के चलते हैं कि एक आदमी आदमी को गुनहगार बनाता है उसका समाज, ठीक है, उसके कंडीशन, सोशल कंडीशन उसको गुनहगार बनाते हैं, तो वो हम ये मान के चलते हैं. पैदाइशी गुनहगार नहीं मानते हैं किसी को. हो सकता है एक आदमी गुनहगार फैमिली में पैदा हुआ है लेकिन वो गुनहगार नहीं है, और हो सकता है एक आदमी एक बहुत अच्छे फैमिली में पैदा हुआ है लेकिन वो गुनहगार निकला, तो ये हो सकता है. ओके. एक्शन रिसर्च एज वी डिस्कस, सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स. इवैल्यूएशन रिसर्च, ठीक है, हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग और इवैल्यूएटिंग समथिंग, ठीक है, किसी इवैल्यूएशन, किसी का इवैल्यूएशन कर रहे, कुछ इवैल्यूएट कर रहे, तो वो इवैल्यूएशन रिसर्च के कैटेगरी में आ सकता है. हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग. इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट एक कंसेप्ट है, ठीक है. मतलब कि अगर किसी व्यक्ति को कोई बड़ी फैक्ट्री डालनी है, ठीक है, तो उसको पहले एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट तैयार करना पड़ता है. मतलब कि उसको ये बताना पड़ेगा कि वो जिस लोकेशन पे, जिस जगह पे फैक्ट्री डालना चाहता है, ठीक है, जहाँ पे उसका प्लान है, तो वहां फैक्ट्री डालने के बाद में वहां का जो पर्यावरण है उसके ऊपर कोई गलत असर नहीं होगा. ये उसको पहले प्रूव करना पड़ता है, पहले बताना पड़ता है. एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट, ठीक है, EIA रिपोर्ट. ये जो रिपोर्ट बनेगा ये एक एग्जाम्पल है इवैल्यूएशन रिसर्च का, ठीक है. यहाँ पे वो रिपोर्ट बनने के बाद वो रिपोर्ट गवर्नमेंट को सबमिट करेगा. फैक्ट्री बनने के पहले की बात है ये. वो गवर्नमेंट को सबमिट करेगा, वो बताएगा कि मैं यहाँ पे फैक्ट्री डालना चाहता हूँ, यहाँ पे इतने इतने पेड़ कटेंगे, यहाँ का जो इकोसिस्टम है इतना इतना डिस्टर्ब होगा, पानी जो है वहाँ पे पानी को मैं यूज करूंगा तो पानी मुझे चाहिए, ठीक है. लेकिन ये सब नुकसान होने के बावजूद यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, यहाँ पे गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट होगा, ये उसके फायदे हैं. फायदे नुकसान उसको दोनों बताने पड़ते हैं. इस ये रिपोर्ट पढ़ने के बाद में गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि इसको परमिशन देनी है या नहीं देनी है. दैट इज कॉल्ड एज इवैल्यूएशन रिपोर्ट, इवैल्यूएशन रिसर्च. ओके. इवैल्यूएशन रिसर्च बेसिकली हेल्प्स द competent authority to make a decision about a particular situation. Then there is research and development, R&D schemes काफी सारे होते हैं, ठीक है. So that is one part of research. Classifications by way of method. This was by way of purpose. Now this is by way of method. So historical research, finding out the historical facts about something. अप्रैल 2024 में एक टीम को तेलंगाना में तीन अलग अलग आर्कियोलॉजिकल साइट्स मिले, ठीक है. उन्होंने वहां पे रिसर्च कंडक्ट किया, उनको तीन अलग अलग साइट्स मिले जो कि बहुत पुराने हैं, ठीक है. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, राइट. हिस्टोरिकल रिसर्च में हिस्टोरिकल फैक्ट्स, हिस्टोरिकल टेक्स्ट, हिस्टोरिकल लिटरेचर, हिस्टोरिकल साइट्स, इनका स्टडी होता है. हिस्टोरिकल रिसर्च. डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, अगेन एज वी डिस्कस्ड, इट इज मोर ऑफ अ डिस्क्रिप्शन इन नेचर. A research is carried out and a descriptive report is created, right. Experimental research, right, many a times the research is carried out on experimental basis, right. In case of experimental research, certain experiments are carried out upon the living organisms or non-living things, whatever, okay, and a research report is prepared, okay. This is purely an experimental research. नीचे जो आपको सीन दिख रहा है ये चाइना का है. China has done one experiment wherein
they inserted certain genes in a human being, right? And they tried to grow a new body part. ठीक है, अब यहाँ पे गलत ये हो गया कि बॉडी पार्ट, ये आदमी जो दिख रहा है आपको, इसके एक्चुअली एक एक्सीडेंट में नाक कट गई थी। ठीक है, तो चाइनीज साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया फिर से नई नाक उगाने का। ठीक है, एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल भी हुआ, लेकिन नाक गलत जगह आ गई, जैसे आपको इमेज में दिख रहा है, दिस इज अ रियल इमेज। ठीक है, सी, ये इम्पॉसिबल नहीं है। ऐसे नेचर में ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो खुद के बॉडी पार्ट्स ग्रो कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल छिपकली। ठीक है, लिजार्ड छिपकली जो होती है, उसका क्या होता है, उसके अगर आप पूंछ काट दो तो कुछ दिनों में नई पूंछ आ जाएगी। मीन्स इट हैज अ क्वालिटी टू रीग्रो इट्स ऑर्गन्स, इट बॉडी पार्ट्स, राइट, इट हैज दैट कैपेसिटी। यही फिलोसॉफी पे, यही टेक्निक पे ये रिसर्च आज के डेट में चल रहा है कि किसी का अगर कोई बॉडी पार्ट खराब हो गया है, किसी का हार्ट है, किसी की किडनी है, तो हम उसको रीजनरेट कर सकते हैं क्या, रीग्रो कर सकते हैं क्या? वो बॉडी पार्ट निकालने के बाद में नया बॉडी पार्ट अपने आप ग्रो हो सकता है क्या? ठीक है, ऑर्गन हार्वेस्टिंग हो सकता है क्या? दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, राइट? Methods involve investigating possible causes and relationship between experimental research by using experimental techniques. ठीक है, and sampling method, as you said, you have already discussed sampling method, but this is just a rough idea as to what are the different words that are generally found in sampling method. एक है simple random sampling, ठीक है, दूसरा है systematic random sampling, and third one is cluster sampling. ठीक है, cluster sampling. Depending upon the type of research, depending upon the gravity of data that you need to collect, you have to select any one of the sampling methods. ठीक है, सो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में एक तरह से लकी ड्रॉ है कि आपके पास में बहुत ज्यादा डेटा है और आप रैंडमली कोई एक डेटा सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, दैट विल बी कॉल्ड एज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मेथड। ठीक है, 10 लोग हैं, 10 लोगों में से आपको 3 लोग चुनने हैं। 10 लोग सेम एज के हैं, राइट, सेम पर्सनैलिटी के हैं, सेम प्रोफेशन को बिलोंग करते हैं, उसमें से आपको 3 लोग चुनने हैं, तो आप रैंडमली कोई भी 3 लोग चुन सकते हैं। ठीक है, इफ यू डू दैट देन इट विल बी कंसिडर सैंपल सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मेथड। ठीक है, सिमिलरली सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग, 10 लोगों में से लेट से 5 लोग चुनने हैं। ठीक है, या तो लकी ड्रॉ से चुन लो या फिर रैंडम सैम्पलिंग मेथड यूज करो। 2 4 6 8 10 हो गए 5 लोग, राइट, ये 5 लोग हमने सेलेक्ट कर लिए। सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग मेथड। ठीक है, एंड फाइनली क्लस्टर सैम्पलिंग मेथड। सो यू क्रिएट अ क्लस्टर्स ऑफ डिफरेंट एरियाज एंड डिपेंडिंग अपॉन द क्लस्टर्स यू हैव टू सेलेक्ट द सैंपल्स। ठीक है, जैसे क्लस्टर सैम्पलिंग में यहाँ पे हर, जैसे मैंने स्कूल्स का एग्जांपल दिया था, तो हर डिस्ट्रिक्ट से 5 स्कूल्स हम सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसमें से 5 या फिर 6 स्कूल सेलेक्ट करें, 3 प्राइवेट 3 गवर्नमेंट। ठीक है, तो जो 3 प्राइवेट 3 गवर्नमेंट है उसमें से एक सेमी सेमी इंग्लिश, एक दूसरा एक मराठी मीडियम, एक इंग्लिश मीडियम, इस तरह से सैम्पलिंग, अलग अलग टाइप का सैम्पलिंग। इफ यू आर डूइंग दैट देन इट इज कंसिडर्ड एज क्लस्टर सैम्पलिंग मेथड। ठीक है, तो सैम्पलिंग मेथड के भी बहुत अलग अलग टाइप्स है, बट दीज आर द 3 मेथड्स दैट जनरली फाउंड। देन देर आर डिफरेंट टूल्स ऑफ रिसर्च, राइट, देर इज लिटरेचर, देर इज इंटरव्यू मेथड, क्वेश्चनियर, सर्वे एंड पेपर इंक टेस्ट। ठीक है, या फिर इंक पिक्चर टेस्ट। Different types of research tools are used in different types of researches depending upon the type of research. ठीक है, then there are a few more things. Statistical tests you need to know about. There are different types of statistical tests. If you want, you can take the screenshot of it, or this is the image which is freely available on the internet also. You can take it from there also, right? So इसमें बताया हुआ है कि जो अलग अलग टाइप के टेस्ट रहते हैं, जेड टेस्ट, टी टेस्ट, ची टेस्ट, ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो अलग अलग टाइप के टेस्ट है, तो ये टेस्ट कब यूज होते हैं, इनका डिस्क्रिप्शन क्या है और इनके एग्जाम्पल्स क्या है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर टी टेस्ट लेना है, ठीक है, तो ये किसके लिए, टू कंपेयर गर्ल्स हाइट विद बॉयज हाइट। ठीक है, तो ये इस तरह के छोटे छोटे सैम्पलिंग्स के लिए टी टेस्ट वगैरह यूज है। स्मॉलर सैंपल्स, अननोन पॉपुलेशन वेरिएंस, कंपेयर मीन्स फ्रॉम 2 ग्रुप्स। ठीक है, कंपेयर मीन्स फ्रॉम 2 ग्रुप्स, तो 2 ग्रुप्स में कंपेरिजन के लिए टी टेस्ट वगैरह जनरली यूज होता है। तो इस तरह से आप इसको डिटेल स्टडी कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट। Now, as we spoke about variables, variables are certain
You can say that the subjects which on which the research is to be carried out. ठीक है, so variables may be independent or it may be dependent. Independent variables which are in the control of the researcher and which can be manipulated or controlled, whereas dependent variables largely depend upon the independent variables. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी. ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का बच्चों के परफॉर्मेंस पे क्या असर होगा, ये अगर रिसर्च टॉपिक है तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये पॉलिसी डॉक्यूमेंट. और परफॉर्मेंस, ये जो बच्चे हैं इनके ऊपर क्या असर होगा, राइट, दिस इज एन डिपेंडेंट वेरिएबल. क्यों? क्योंकि जब हम अप्लाई करेंगे, राइट, बच्चों का आगे का जो एजुकेशन है वो नेशनल पॉलिसी के ऊपर डिपेंड है, राइट. सो नेशनल पॉलिसी हमारे कंट्रोल में कैसे बनाना है, क्या बनाना है. ठीक है, ये हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल. और पॉलिसी के ऊपर डिपेंड है, उनका एजुकेशन उसके ऊपर डिपेंड, अफेक्ट द रिसर्च. ठीक है, इनका रिसर्च के ऊपर इफेक्ट हो सकता है. जस्ट मिनट. इज वेरिएबल्स एंड सैंपल्स द सेम? नो, दे आर डिफरेंट. ठीक है, वेरिएबल्स आर समथिंग डिफरेंट, सैंपल्स आर समथिंग डिफरेंट. सैंपल्स आर समथिंग दैट यू डिसाइड एज टू व्हाट यू नीड टू टेक एंड यू नीड टू टेक इनटू कंसिडरेशन. दोनों अलग अलग चीजें. इज माय वॉइस क्लियरली ऑडिबल टू यू ऑल? क्योंकि मुझे यहाँ थोड़ा सा डिस्टर्बेंस दिख रहा है. ओके, ठीक है. So this was about extraneous variables, variables which are not taken into consideration but still may affect the functioning. ठीक है. Okay. Finally, the last slide that I want to share, just a few more minutes. ठीक है, I know it's past 1 now. ठीक, थोड़ा सा और एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो कि आपको फ्यूचर रिसर्च में काम आएगी. इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है. ठीक है, एंड ये जो चीज है ये आपको फ्यूचर रिसर्च में भी पता होना बहुत जरूरी है, राइट. रिसर्च एथिक्स, सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रिंसिपल है रिसर्च एथिक्स का वो है प्लैगरिज्म. जो प्रॉब्लम जनरली एक रिसर्चर फेस करता है. ठीक है, प्लैगरिज्म. प्लैगरिज्म का मतलब है दैट यूर research is copy pasted from some other sources or you have taken some references from other sources but you have not given proper citations to those references. You have not given proper references. ठीक है, कई बार रिसर्चर्स कुछ डेटा कहीं से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, कहीं से डेटा ले लेते हैं, चाहे बुक हो चाहे इंटरनेट हो. ठीक है, दे टेक द डेटा बट दे डू नॉट गिव प्रॉपर रेफरेंसेस टू दैट डेटा. होता ये है, जैसा मैंने डॉक्यूमेंट्स बताया था, तो ये दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो आपको सबमिट कर रहे हैं उसमें से एक डॉक्यूमेंट है प्लैगरिज्म चेक सॉफ्टवेयर. ठीक है, प्लैगरिज्म चेक सर्टिफिकेट का. कि आपका थीसिस सबमिट करने के पहले, हार्ड कॉपी सबमिट करने के पहले आपको एक सॉफ्ट कॉपी यूनिवर्सिटी में सबमिट करना है. ठीक है, फॉर प्लैगरिज्म चेकिंग. तो यूनिवर्सिटी में सबमिट करने के बाद में यूनिवर्सिटी लाइक का जो लाइब्रेरियन है वो उसको सॉफ्टवेयर में डालेंगे. ठीक है, जनरली हमारे पास में उरकुंड नाम का सॉफ्टवेयर है. ठीक है, अभी पता नहीं मुझे कौन सा है बट वहां पे था तब मैं उरकुंड यूज होता था. ठीक है, तो उरकुंड सॉफ्टवेयर में वो आपका थीसिस डालेंगे, वहां का थीसिस का एवेल्युएशन होगा और थीसिस का परसेंटेज परमिसेबल लिमिट में होना जरूरी है. अगर वो परमिसेबल लिमिट जैसे 10 फॉर एग्जांपल 10%, 10% से अगर ज्यादा उसने डिटेक्ट कर लिया कि 10% से ज्यादा आपने कॉपी पेस्ट किया हुआ है तो आपको थीसिस, उसके अलग अलग कॉन्सिक्वेंसेस है. ठीक है, अगर 10% से लेट से 40% है, उसके परसेंटेज है, मुझे परसेंटेज आप देखना पड़ेगा, रिवाइज हुआ है उसका परसेंटेज. फॉर एग्जाम्पल 10 to 40% है. ठीक है, तो आपको थीसिस, आपको जो है वो थीसिस रीराइट करना पड़ेगा. लेकिन 40% से ज्यादा है तो आपका थीसिस कैंसिल हो जाएगा. ऐसे कुछ उसके क्राइटेरियाज है. ठीक है, वो आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे मिल जाएंगे. लेकिन प्लैगरिज्म एक बहुत सीरियस कंसर्न है. रिसर्चर बड़ी मेहनत से 3 साल रिसर्च करके अपना थीसिस बनाता है, लेकिन जब वो सॉफ्टवेयर में डालते हैं तो पता चलता है कि इसमें से काफी सारा डेटा कॉपी पेस्टेड है. तो यहाँ पे रिसर्च एथिक्स का पार्ट यही बोलता है कि जब हम रिसर्च कर रहे हैं तो प्रॉपर साइटेशन, प्रॉपर रेफरेंसेस, ठीक है, प्रॉपर पैराफ्रेजिंग करना जरूरी है. जेन्युइन रिसर्च वर्क होना जरूरी है. रिसर्च वर्क कहीं से कॉपी पेस्टेड नहीं हो सकता है.
ठीक है. Presentation of true and complete facts. Whatever research you have done, you have to present all the facts before the competent authorities. भले ही आपका hypothesis prove हो रहा है या disprove हो रहा है, ठीक है. You have to mention all the facts before the authorities. Genuine sources you have to reuse, right? Whatever sources you are using, you have to use genuine sources. For example, law में we do not consider newspapers as a genuine source of information. न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, कितना भी अच्छा न्यूज़पेपर हो, टाइम्स ऑफ इंडिया हो, ठीक है, न्यूयॉर्क टाइम्स हो, ठीक है, लेकिन फिर भी हम उसको रिलायबल नहीं पकड़ते. उसका डेटा, उस पर पब्लिश हुआ हुआ आर्टिकल हम कंसिडर नहीं करते, ठीक है. इट इज नॉट कंसिडर एज अ जेन्युइन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. जेन्युइन सोर्सेज क्या हो सकते हैं? गवर्नमेंट के वेबसाइट्स हो सकते हैं, बुक्स हो सकते हैं, जर्नल्स हो सकते हैं, ठीक है. ये जेन्युइन सोर्सेज हो सकते हैं, बाकी चीजें नहीं. So you have to be careful with that also. And finally, voluntary and unbiased participation. ठीक है. ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस की है कि रिसर्चर ने जब रिसर्च करते हैं तो उसको अनबायस होकर के रिसर्च करना जरूरी है, ठीक है. खास करके जब वो सोशल रिसर्च कर रहा है या फिर वो किसी ऐसे टॉपिक पे रिसर्च कर रहा है, ठीक है, जो कि थोड़ा सा सेंसिटिव नेचर का है, ठीक है. आई बिलोंग टू अ पर्टिकुलर कास्ट, पर्टिकुलर कम्युनिटी, एंड आई एम डूइंग रिसर्च ऑन दैट पर्टिकुलर कम्युनिटी. उसी कम्युनिटी पे मैं रिसर्च कर रहा हूँ, ठीक है. तो अब मैं अपने कम्युनिटी के बारे में गलत कैसे बोलूँ? मुझे तो सही ही बोलना पड़ेगा. ये बायस हो गया, ठीक है. ये बायस रिसर्च हो गया कि मुझे मेरे कम्युनिटी को ही सही प्रूव करना है, मुझे मेरे आइडियाज को ही सही प्रूव करना है, तो मैं उसी पॉइंट ऑफ व्यू से रिसर्च करूंगा. मैं ऐसे लोगों को लूंगा ही नहीं जो मेरे अगेंस्ट में बात करेंगे. ये बायस्ड हो गया, right? So you have to be, when a researcher is carrying out a research, voluntary and unbiased participation is very much important to this. Okay, so this was about some idea. I know I didn't cover all the points. Some idea about the basics of research methodology or the types of research that we do. So if you have any questions, you can ask, or here I have given my contact number as well as email address also. ठीक है. तो आप अगर अभी क्वेश्चन नहीं है तो बाद में क्वेश्चन है तो बाद में भी आप कॉल करके पूछ सकते हैं, राइट. इफ यू हैव Okay, एनी sir. क्वेश्चंस Sir, प्लीज टाइप इन am I द audible? चैट बॉक्स इटसेल्फ. Hello. हेलो. Am I audible, sir? No, actually I am having some issue with the speakers, so if you could put your questions in the chat box it will be good. मुझे थोड़ा सा Okay, sir. स्पीकर का ही प्रॉब्लम आ रहा है यहाँ पे, तो क्वेश्चन होगा तो प्लीज चैट बॉक्स में डालिए आप. Hmm. See, action research and applied research are very much similar in nature. That's what I said in the very beginning also कि कई बार अलग अलग बुक्स ने अलग अलग टाइप के वर्ड यूज किए. कोई एक्शन रिसर्च बोल रहा है, कोई अप्लाइड रिसर्च बोल रहा है, ठीक है. बट द पॉइंट इज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्चेस, राइट, सो दे आर वेरी मच सिमिलर इन नेचर. आपको अगर बेसिक समझ में आ गया व्हाट इज अप्लाइड रिसर्च, द रिसर्च दैट इज कैरिड आउट टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम इन द सोसाइटी, right? The immediate problem that has arrived, it is called as applied research. And in some books the same principle is mentioned, but the word uses applied research, and in other books the word uses action research. Okay, so that try to get the basic idea about it and you will get an idea that both of them are very much similar in nature. Both are intended towards solving a specific problem itself. Okay. सम कॉल, जैसे कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एंड लेबोरेटरी रिसर्च, ये भी दो वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे कुछ बुक्स में, राइट. सो एक्सपेरिमेंटल एंड लेबोरेटरी रिसर्च आर वेरी मच सिमिलर इन नेचर, राइट. सो दे आर काइंड ऑफ अ सिनोनिम, बट कुछ बुक्स में एक्सपेरिमेंटल है, कुछ बुक्स में ये है. ओके, सो एनी मोर क्वेश्चंस? यू कैन सी द व्हाट डू यू से, the contact number and email address. You can call later on if you have. If both, if got both options, then how to go for it? Answer. Generally, if
paper setter is aware enough, he will not put these two options at the same time. ठीक है, अगर पेपर सेटर को इसके बारे में क्लियर आइडियाज है तो वो दोनों ही ऑप्शंस एग्जाम में नहीं डालेगा. ठीक है, अगर क्वेश्चन इस टाइप का है, विच टाइप ऑफ रिसर्च इज कैरिड आउट टू सॉल्व अ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, राइट, तो ऐसे टाइम पे ऑप्शंस अलग अलग रहेंगे. ठीक है, ऑप्शंस अलग अलग रहेंगे. हाँ, हो सकता है डॉक्ट्रिनल हो, नॉन डॉक्ट्रिनल हो, अप्लाइड रिसर्च हो एंड लेट्स से लैबोरेटरी रिसर्च हो. तो यू हैव टू करेक्ट चूज द मोर करेक्ट वन. द मोर करेक्ट वन विल बी अप्लाइड रिसर्च. ठीक है, या फिर एक्शन रिसर्च. यू हैव टू चूज द मोर करेक्ट. कई कई बार होता होता है कि दो आंसर्स एक जैसे लगते हैं, राइट, दोनों ही आंसर्स करेक्ट लगते हैं, तो आपको उस टाइम पे जो आंसर ज्यादा सुटेबल है, जो ज्यादा करेक्ट है, वो लेना जरूरी है. ठीक है, इस एग्जाम्पल में अगर सोशल प्रॉब्लम की बात करेंगे तो फिर वहां पर हम लोग सोसाइटी के किसी एक्चुअल प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बात करें तो ये नॉन डॉक्टरनल में आ सकता है. ठीक है, नॉन डॉक्टरनल में हम एक्चुअली फील्ड वर्क की बात करते हैं, लेकिन ज्यादा प्रॉपर आंसर कौन सा है, अप्लाइड रिसर्च है, तो उसको सेलेक्ट करना है आपने. ठीक है, मोर अबाउट फिक्स्ड रिसर्च. जस्ट अ मिनट. Okay, let me check the few questions first. Okay, fixed research. Where did you get this question, fixed research? Sharayu, right? He has messaged me in person. So can you please tell me as to uh, where did you find this one? The PPT itself. Just let me check once. In what context it is used? Let me check. I think it was in the first slide itself. Okay, this one, fixed research and flexible research. Okay, okay. Right. See, these are the kind of correlated type of research I have mentioned here, qualitative and quantitative. So fixed as well as flexible research. So fixed research here simply means that the researcher has already fixed set of planning. Right. He has already decided as to what he wants to do in the research. The timetable is fixed, the location is fixed, the people whom he's going to interview is fixed, everything is fixed. That is considered as a fixed kind of a research. Okay, flexible kind of a research or unpredictable kind of a research is where he's going to collect the data later on. He is going to plan later on. Right. That is called as a flexible kind of a research. Okay. For example, if you have already decided that you are going to take 5 schools from every district to carry out the research activity, right? You have decided the schools, you have shortlisted the schools, you have shortlisted the questionnaire, right? You have shortlisted the people whom you are going to interview, and everything is fixed. It is considered more of a fixed research. Okay, fixed research is not a strict categorization. किसी और research में भी आ सकता है. Okay, it will be more what do you say, it may be doctrinal or non-doctrinal kind of a research. Doctrinal, non-doctrinal, ये broad headings है. Try to understand this. ठीक है, doctrinal, non-doctrinal ये बहुत broad headings है. इसके अंदर में काफी सारी चीजें आ सकती है. Okay. Any other questions? I don't think there are any other questions. Okay, I think we'll stop here for now, right? And if you still have any more questions, you can ask me later on. Okay, just a minute. Okay, this is something he was talking about, right? Fixed research and flexible research. This is something that he got. Okay. Okay, so we will stop here for now. It's 120, 120 now, 117 now. Okay.
If you have any more questions, you can ask me later on. So again, I thank the organizers as well as the participants uh, for this wonderful session, for listening before so quietly. I think I will land the meeting also here. Okay. Okay, we'll end the meeting here. Thank you. सर थांबूयात आपण. काही क्वेश्चन आहेत अजून मुलांचे? हॅलो सर. ठीक आहे. गिनगिने सर. गिनगिने सर. नेक्स्ट सेशन 2 वाजताचं गिनगिने सर घेणार आहेत. हॅलो सर. हॅलो गिनगिने सर. नेक्स्ट सेशन आपण 2 वाजता घेऊयात. गिनगिने सर घेणार आहेत. आपण थांबूयात आताचा क्लास. Softwares in research. Softwares for carrying out research successfully. Softwares for identifying the genuinity of a research. There are softwares for both of them. We'll discuss that also, right? So if you look at the topics, or if you look at the titles itself, the titles are extremely vast in nature, right? There are so many different things that a PhD entrance student is required to study, right? So these are the 10 basic ideas, some important topics which are to be understood, which are to be covered by a PhD student. Apart from this, there is more to research methodology. That also we'll see. Okay.